So hi, good morning, Sunday morning. Sorry to change your routine, but I believe it is very important for us to learn about what we are going to learn about arthritis, about osteoarthritis, about preventive measures, about agar ho bhi gaya, to what can we do. So a bit about myself. I'm Manish Sanghai, and I founded this institute in 2016. It started with holistic approach to health, and then gradually I evolved, and now it is Institute of Holistic Abundance, wherein I believe that we are all meant for great things in life. We are all meant to live our purpose, and this body, जो हमारा एक vehicle है, this needs to be very fit, very strong if we want to achieve our purpose in life. So at Institute of Holistic Abundance, we do a variety of things. We learn a lot. We exercise. We follow a good diet. We follow a good lifestyle. This is not a PR that I'm doing, and because most of my services are actually free. So what we do is we enable people realize their true potential through exercise, diet, mindset training, attitude training, a lot of programs that we do. जैसे आज का program है. So this is just an informative program. So if anybody has any kind of arthritis, I know this video will circulate to many places. Please, please, please don't stop any medication on your own immediately after the session. Yes, medications can be reduced gradually over a period of time, but it's not right to stop medications because your arthritis can flare up. Okay, so arthritis is not a very uh, small condition. It's a very, very dangerous thing. So please don't stop any medication on your own. Always go to your doctor or a registered licensed health coach who can gradually help you strengthen yourself or use other modalities to manage your arthritis. Please don't stop any medication on your own. Okay, so why this topic of osteoarthritis? So a bit about myself. I am Manish Sanghai. I stay in Mumbai. I'm 40 years old, and I myself had a condition called as ankylosing spondylitis, which is a type of arthritis which affects all the joints. So, just say osteoarthritis of the knee affects only the knee. So, I had arthritis in my neck, spine, hip joint, arms, legs, ankles. मुझे पूरे body में arthritis था, and I managed my condition in such a way that for the last 16 years now, I am off all the medications. So, at the age of 24, doctor told me that Manish, you may need a hip replacement by the age of 30, and I did certain things with myself when I was 24. I went to the Yoga Institute, Mumbai. I learned about the functioning of the human body, anatomy of our joints, muscles, foods, dietary changes, mindset changes, many things I did with myself. And within 6 to 8 months, all my medicines stopped. Age of 30, doctor told that मुझे hip replacement करना पड़ेगा. Age of 32, I ran a half marathon. Okay. So see, anything is possible if we know, first of all, we should know what the disease is about, what is the disease activity, and what steps we can take to manage our condition. Okay. So arthritis is a very, very common condition. In fact, I was just going through data yesterday. So on national, as per National Institute of Health, any guesses what percentage of Indians are maybe suffering or having symptoms of osteoarthritis? Any idea? Any guesses? What percentage of Indians are having symptoms or actually suffering from osteoarthritis? Percentage? Any guesses you can do? You can unmute and speak. You can type in the chat box. Anything is okay with me? Yeah, Pooja? 50 to 60%. 50 to 60. Any other guesses? Pooja is saying 50 to 60. मतलब इंडिया में अगर 140 करोड़ है तो 70 करोड़ को आर्थराइटिस है. Okay. Any other guesses? Any other guesses? Pooja is saying 50 to 60. Okay. Come on, एक number बोलना है. There is no negative marks for this. Okay. Yeah. 20. Vishal is saying 20. Okay. Any other guesses? One last guess. Any Anjana aunty or Amita? जिन्होंने 40. unmute किया था. 40. Okay. So Pooja hit the nail on the head. Yeah. So many new findings are saying that 64% of people in their who are above 60, 64%, a startling figure. I was shocked that how can, like, यहाँ पर अगर अभी भी 35 लोग हैं, 30 लोग हैं, 30 people are there right now here. If chances are there, most of you are either having some form of pain in the body, joints, knee pain, or haven't diagnosed with osteoarthritis. So all the more important that we are completely attentive in the session, because this I'm speaking from my experience, my study. So I have done my study from the Yoga Institute Santa Cruz, and I have been trained with some of the best coaches in the world. Right now, I'm doing few courses from the US also, and I'll be a licensed health coach
in September this year. So I'll have license to practice in hospitals. I can have my own clinic. So I have a good background about good study, good research I have done in the last 16 years to manage my own condition, and I'm helping people with similar conditions in the last 12 years and helping people deal with these conditions through my classes, through one-on-one sessions I used to take earlier. Now I do group sessions wherein I teach people how to reverse it. So I have someone with me, Anjana Auntie, and she is with me since January 2023. So I'm just putting Anjana Auntie on the spotlight. Anjana Auntie, can you mute yourself? I'll just ask you a few questions. No reason to be afraid of. Just be yourself. Yeah. So Anjana Auntie is with me, and she had some symptoms of osteoarthritis, and in fact, she was diagnosed with osteoarthritis of the knee. Anjana Auntie, you need to unmute yourself. आपको unmute करना पड़ेगा. Yeah. And she was complaining of pain. She was not able to sit down, not able to climb stairs very comfortably. And we did few things. And Anjana Auntie, can you just share your experience related to osteoarthritis only? Yeah. Yeah. So when I started the classes in 2023, I had a lot of stiffness, and I had a spur, and then I couldn't sit cross-legged on the floor. But slowly and gradually, with Manish's guidance and his affirmations that you can get well, don't worry. So I started following with his guidance the right diet, the knee strengthening exercises, and sunning, and all this really helped me to a large extent. And now I can climb like 100 steps and sit cross-legged on the floor. Yes. So, Anjana, your experience about that caves that you went, Ajanta Ellora caves or Elephanta caves, very. Yes. So about 2-3 months back, I had gone to Elephanta Caves, and I was to climb more than 100 steps over there. So I was just wondering whether I would be able to do it, and no. And then I said no to myself. I said, no, I am going to manage. And I successfully climbed those more than 100 steps. We should all clap for Anjana Auntie for her dedication. She is only 60 years of age, and she has like not reversed her only, not reversed her symptoms. I would see this thing now, arthritis, what people say that this is not reversible. Yes, it is not reversible because एक बार आपको हो गया ना, it's a degenerative condition which will get worse with time. और खराबी होने वाला है. But like Anjana Auntie said, what we can do is we can manage the symptoms in such a way that we can put it into remission. ओके तो अगर आप डॉक्टर के पास गए या आप कोई हेल्थ कोच के पास गए, वो बोलेगा इसका कोई क्योर नहीं है, हमें निराश नहीं होना है. ओके, यस, आई एम सेइंग क्योर नहीं है इसका. फ्लेयर अप कभी कभी हो सकता है, बट वी कैन मैनेज अवर कंडीशन इन सच अ वे दैट वी कैन लीड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट नॉर्मलसी. जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज का कोई क्योर नहीं है मेडिकल साइंस में, बट वी हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट शरण इन अवर इंस्टीट्यूट हु हैव रिवर्स देयर डायबिटीज. So we should not give our power only to a doctor or a health coach कि उन्होंने बोल दिया इसका इलाज नहीं है तो you have to suffer. We are not meant to suffer in life. हमें उसकी सफरिंग निकालनी, हमें उसका पेन निकालना है. लाइक अंजना आंटी का मैंने टेस्टिमोनियल क्यों दिया आपको? टू गिव यू बिलीव, बिकॉज अगर आपको विश्वास नहीं है सेशन में, अगर आपको विश्वास नहीं है इस टेक्निक में, इट वॉन्ट वर्क. इट इज ऑल साइंस बेस्ड, इट इज ऑल लॉजिकल, इट इज वेरी साइंटिफिक. बट सबसे पहले अंजना आंटी को मेरे में विश्वास था. शी बिलीव्ड that yes, by reducing my weight, by doing certain range of motion exercises, by strengthening exercises, through flexibility, through mindset. उन्होंने affirmations क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने शेयर करी, affirmations. That every day हम affirmations करते हैं हमारी क्लासेस में, that every day in every way I am increasing my mental and physical capacity. I am strong, I am perfect. ये सब बोलने से क्या हो गया? There are certain certain thing called as placebo effect. कि आप जब पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव ही होता है. ओके, सो एनीबडी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन, डोंट गेट डिसहार्टेंड. कितना भी खराब कंडीशन हो, मेरा कंडीशन इतना खराब था, आई कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, एंड नाउ जैसे बताया मैंने रन किया. सो फर्स्ट हैव फेथ इन द सिस्टम. ओके, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा वर्ड. ओके, सो कैन एनीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स द स्पेलिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? ओके, सो आइटिस, अगर कोई भी बीमारी के आगे अगर आइटिस लग गया ना, तो आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. ओके, तो एनीबडी वांट्स टू शेयर व्हाट इन्फ्लेमेशन इज? किसी को शेयर करना है इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एनीबडी, what does inflammation mean? Anybody has any idea about inflammation? Or should I continue? Okay, I'll continue, no problem. Dr. Amandeep Bindra is there. Dr. Amandeep, can you share what actually, because we have a doctor in our team also, in our team as a student. So Dr. Amandeep, are you comfortable sharing in short about inflammation? You can take the phone in, we cannot see your face. So you can take the phone in your hand. No, no problem. So inflammation क्या होता है? एक तरह से अगर सिंपल भाषा में बोले ना, आपके शरीर में आग लगी हुई है, आपके जॉइंट्स में आग लगी हुई है, वो समझ जाइए.
सिंपल भाषा में अगर समझे, इट्स नॉट एक्चुअली स्वेलिंग। स्वेलिंग अलग होता है, स्वेलिंग होता है बिकॉज ऑफ इंजरी। स्वेलिंग होता है बिकॉज ऑफ इंजरी, की इंजरी होता है तो वहाँ रेडनेस हो जाता है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक मतलब क्या होता है कि हमेशा आपके समझिए जॉइंट्स में सूजन है या हमेशा जॉइंट्स में रेडनेस है। आप जस्ट उसको विजुअलाइज करिए, रेडनेस इन योर जॉइंट्स एक तरह से। सो आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो हमेशा रहता है। चोट लगने से क्या होता है, कुछ दिन के लिए चोट लगा, ठीक हो गई, समझिए आपकी जॉइंट्स परमानेंट डैमेज हो रहे हैं एंड इट इज गेटिंग वर्स विद टाइम। अगर इन्फ्लेमेशन हमें कंट्रोल नहीं किया, जैसे घर में अगर एक जगह सपोज आग लग गई, आग को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आग क्या होगी, आग फैलते जाएगी। ओके, सो दिस इज आइटिस, ITIS, आइटिस। ओके, ऑस्टियो का मतलब होता है, ऑस्टियो जो फर्स्ट 5 लेटर्स हैं, इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू बोन्स, हड्डियां। ओके, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, बोन्स बिकम पोरस, बोन्स बिकम सॉफ्ट, तो इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमने सीखा था। ओके, हाउ टू मैनेज अवर ऑस्टियोपोरोसिस, जो लास्ट मास्टर क्लास हमारी हुई थी। So that is bones becoming soft. Osteoarthritis matlab there is inflammation of bones and joints. This has nothing to do with knee only. Okay. So osteoarthritis can affect your spine. It can affect your arms, legs, hips, knees. जितने भी joints है, shoulders, neck, जो भी joints है, कोई भी joint को affect कर सकता है. Okay. But today we are going to focus more on knees because in India especially, osteoarthritis of knee is the most common. Any reasons you think why Indians have in पूरी दुनिया में we are the knee osteoarthritis capital of the world today? Okay, so it's not a very proud thing to say, but India में percentage wise, as a percentage of population, India is the like this disease capital of the world. Any reason you think why? Obesity, Muktadis, yes, obesity, Dairy, yes, because yeah, dairy. obesity. Any other reason? Dairy, yes, obesity, dairy. But dairy, I think, Anjanati, is more for osteoporosis rather than osteoarthritis. Okay. Dairy is the reason, like for because yeah, since Anjana aunty has food, yes. Anjana aunty ने बहुत important point बोला है, dairy. Okay. So you will be amazed to know this fact. India and America, USA, United States of America, these two are the largest consumers of dairy इन द वर्ल्ड। डेयरी में कौन सा होता है, क्या सिखाया हमको डॉक्टर ने, क्या सिखाया या हमें एडवर्टीजमेंट ने क्या सिखाया, मिल्क से हमें क्या मिलता है, विच मिनरल डू वी गेट फ्रॉम मिल्क, कौन सा मिनरल मिलता है, कैल्शियम। कैल्शियम, वी गेट कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम ज्यादा है हमारे शरीर में तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस होना चाहिए, अगर कैल्शियम है तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बिकॉज सब हमें बचपन से स्कूल में सिखाया गया, माँ बाप ने सिखाया, फ्रेंड्स ने सिखाया, कमर्शियल ने सिखाया कि जितना ज्यादा कैल्शियम खाओगे उतनी हड्डी आपकी मजबूत बनेगी। ओके, एंड इट्स अ लाइक अ पैराडॉक्स दैट India and America, two largest consumers of calcium, are having most cases of osteoporosis, which is weakening of the bones. So it's a big myth. Since Anjana aunty brought up this point, मैं खाली I'm just hearing. It's a big myth कि दूध पीने से हमें कैल्शियम मिलता है. In fact, animal protein, any kind of animal protein, leaches calcium carbonate out of your bones. It leaches. उल्टा मिल्क आपकी हड्डियों को कमजोर कर रहा है. This is all based on science. I'll just quickly share. मैं देखता हूँ हार्वर्ड का एक रिसर्च मेरे को मिला था. So I do a lot of study. Yes, I have it. So you can maybe read it. Somebody can read it, or I'll read it out. I'm just sharing the screen. Somebody say yes when you can see the screen. Okay. Can you look at the screen? Wait. Now, can you look at the screen? Somebody say yes, Pooja. यस यस। Yes. Okay. So this is the research from Harvard School of Public Health. Harvard is in United States of America. सबने सुना होगा Harvard University. So this is एक बहुत बड़ा research हुआ था by David Ludwig. He is a professor there at Harvard. That milk may not be necessary for most adults. Okay. So हम खाली first line पढ़ेंगे that milk has long been seen as an important source of calcium and other nutrients. कि बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं कि मिल्क में कैल्शियम होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, particularly for children. But some researchers suggest that it is not a necessary part of healthy diet for most adults and may even be harmful if consumed excessively. वो harmful हो सकता है. Okay, ये देखिए, ये लाइन देखिए, I'm just highlighting this line. ये रिसर्च जो हुआ उसने क्या फाइंड किया, they found that countries that consume highest amounts of dairy tend to have the highest rate of hip fractures. Isn't this amazing? Like हम जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, all that conditioning is being broken down.
दैट दूध पीने से मेरा बच्चा मजबूत होगा, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं दूध ज्यादा पियो. इट्स लाइक plain nonsense, I would say. Okay, so don't trust anybody blindly. Do your own research. We have internet now, we have so many sources. We have examples like me, जो प्रोटीन हम सोचते हैं कि हमें पनीर से प्रोटीन मिलेगा, मिल्क से प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ये जो हवा बना दिया प्रोटीन का, नाउ मिलेट मिलेट मिलेट. डोंट रन आफ्टर दिस फैट्स. ईट अ कंप्लीट डाइट, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, विच मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ डाइट जो होता है वो ज्यादा खाइए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जैसे मैंने बोला, अप्रोक्सीमेट 64% ऑफ पीपल अबव 60 are having some form of osteoarthritis. तो हम I'll just start my presentation. Yes, lack of exercise movement also is a big reason for osteoarthritis. जो हम सीखेंगे the risk factors हम देखने वाले हैं. So this is the presentation I made yesterday only, since this was I arranged this as a very short notice. Yeah. I'm just starting the presentation now. Any questions anybody has till now? Please note down. हम question answer साथ में ले लेंगे, because otherwise the entire session मुझे exercise भी सिखानी है. I want to take up exercises also today. So this is the poster that I made for osteoarthritis, where we will learn about the anatomy of the joint. कि हमारा joint क्या होता है सीखना बहुत जरूरी है. We will learn certain exercises, asanas also, and we learn about diet. Okay. So पहले osteoarthritis, anatomy of knee. Okay. Knee हमारा क्या होता है? तो किसी को idea कि has and does anybody know that our knee is the biggest joint in our body, even bigger than the hip joint? And any guesses, knee के कितने parts होते हैं या कितने compartments होते हैं? No, Dr. Amandeep will not answer this. Any others? Knee में कितने compartment होते हैं? Read Devya Bhabhi saying 4. Okay. Anybody else? Any guesses? Any random number? Okay. Knee में हमारे 3 compartment होते हैं. There are 3 compartments in the knee. जो हम देखेंगे. So don't get overwhelmed by the picture. इसमें काफी कुछ बताया गया है. हमें आज के लिए सब जानना जरूरी नहीं है. Okay. I'm just going to share the screen again. Yeah. So this is what our knee is actually. ओके हमें क्या समझना है इसमें, मेन चीज आप देखिए जो समझना है. एक तो मेनिस्कस. कैन यू सी मेनिस्कस देयर एट द सेंटर? जो गादी बोलते हैं ना, गादी जो सिंपल भाषा में हम गादी बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द मेनिस्कस, द स्मॉल राउंड सर्कुलर थिंग सिटिंग बिटवीन द फीमर, जो हमारे थाई बोन एंड टीबिया, जो हमारा शिन बोन है, उसके बीच में जो ये गादी होती है, ये दिस इज अवर मेन कंसर्न. ये एंड उसके ऊपर ये जो यू शेप आप ये देख रहे हैं, दिस यू शेप्ड, this is a ligament. ये इसको ligament बोलते हैं, medial ligament. Okay. Cartilage, sorry, the cartilage, the articular cartilage that we see here, जो हम दोनों साइड देख रहे हैं, U shaped, and meniscus. This is what is damaged in osteoarthritis. मेन जो होता है, पटेला ऑल्सो. यस, पटेला मतलब जो हमारा बॉल ऑफ द नी जो हम बोलते हैं ना, नी जो नी बॉल जो बोलते हैं, ऊपर आप फील कर सकते हैं गोल गोल, दैट इज कॉल्ड एज पटेला. ओके. ऊपर क्वाड्रिसेप्स देख रहे हैं, कैन यू सी द मसल ऑन द टॉप, दैट इज क्वाड्रिसेप्स. एंड नीचे टीबिया दो देख रहे हैं, दिस इज अवर शिन बोन. सो दिस इज द इमेज ऑफ अ राइट नी. ये राइट नी है. ओके. एवरीबडी क्लियर? एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज हियर अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द नी जॉइंट? बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या अफेक्ट हो रहा है हमारा, हमें वो समझना बहुत जरूरी है. ये तो मेनिस्कस, आर्टिकुलर कार्टिलेज, अवर पटेला, क्वाड्रिसेप्स एंड काफ मसल्स, हम इस पे आज फोकस करेंगे. दैट हाउ इसमें कुछ भी हमारा डिफेक्ट अगर होता है, या एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस टू आस्क? अनम्यूट किया है कुछ लोगों ने, यू कैन आस्क नाउ. I'm in big problem, Manish. या I have so much pain. I can't tell you. I'm going through treatment. But doctor ने भी surgery नहीं बोला है. But I cannot move. मतलब my left leg is giving me so much problem. Bindri Di told me to talk to you. what about which part is giving you pain? And the whole knee. I Okay, cannot walk. okay, we'll discuss this after the session, or one on one we'll discuss after the session. So I'll just cover Okay, it. I'll sure. just, yeah, because many Okay, answers you will get, in the presentation. So you just okay, wait for some time. We'll talk after the okay, session sure, only. sure, sure. Yes, no, don't worry, auntie, don't worry. Yeah. Okay, thank you. Because my father also had this, and he had to undergo surgery of both the knees in the gap of 5 years. So I have a good idea Okay, about what you can do and which doctors to consult. Because okay, sometimes, yes, few doctors are very conservative, they like keep on delaying the treatment, but it's not advisable, because not taking care of your knee will affect the other parts of your body. Okay. So okay, since Kiran auntie has asked this is very important for every one of you, or especially the senior citizens here. See, क्या होता है, हम समझते हैं कि सर्जरी बेकार चीज है,
राइट। हम देखते हैं कि इसको नेचुरली हम ठीक करेंगे। नॉर्मली ट्रेंड क्या होता है लोगों का, दैट आई विल रिलाई ऑन आयुर्वेदा, आई विल रिलाई ऑन होम्योपैथी, आई विल रिलाई ऑन योगा। बट इफ यू आर नॉट वॉकिंग, अगर हम वॉक नहीं करेंगे क्या होगा, हमारा हार्ट कमजोर हो जाएगा हमारा। बिकॉज वो क्या होता है, उसका एक साइड इफेक्ट हो गया एक तरह से नॉट वॉकिंग। बिकॉज किरण आंटी को इतना पेन है, वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं। वॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो वॉकिंग नहीं करने के साइड इफेक्ट्स है, डायबिटीज, उनका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, उनका हार्ट ये होगा, मेनी अदर थिंग्स हैपन। सो प्लीज 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 डोंट सफर। अगर आपको पेन हो रहा है मतलब इट हैज एडवांस्ड, योर ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर नी में पेन है, इट इज एडवांसिंग। वी नीड टू डू समथिंग, आइदर जो हम क्या क्या ट्रीटमेंट है, यस आई विल कवर द ट्रीटमेंट ऑल्सो, बट प्लीज डोंट सफर। अगर आपको पेन हो रहा है, गो टू अ डॉक्टर, जरूरी है डॉक्टर के पास जाना। बिकॉज चीजें हाथ से निकल गई है, यू आर नॉट इन अ प्रिवेंटिव स्टेज एनी मोर, वो क्योर की तरफ आ जाएंगे आप। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द पीपीटी नाउ। व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? मैंने जैसे बोला आपको, मेनिस्कस एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो उसमें क्या होता है देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में। सो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं हेल्दी जॉइंट है। कैन यू लुक एट द स्क्रीन नाउ, हेल्दी जॉइंट। सो हेल्दी जॉइंट देखिए कितना मस्त है, पूरा गैप मेंटेन्ड है। जो जो दोनों जो हमारे मेजर बोन्स हैं, जो थाई बोन ऊपर आप देख रहे हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये थाई बोन हो गया ऊपर वाला। सॉरी, आई जस्ट ब्रिंग इट अगेन, विंडो क्लोज हो गया था। ऊपर वाला हमारा थाई बोन होता है, जो हमारा थाइज होता है, दैट इज अवर थाई बोन। जस्ट ब्रिंगिंग दिस अप अगेन, यस। तो ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये थाई बोन है, नीचे वाला हो गया हमारा शिन बोन। बीच में देखिए कैसे लेफ्ट साइड में प्रॉपर गैप मेंटेन्ड है, देयर इज नो डिजेनरेशन। दिस इज अ हेल्दी जॉइंट। ओके, एंड राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेयर सी दोनों जो जॉइंट्स है, जो दोनों जो हड्डियां हैं, उसके बीच में गैप कम हो गई है उसके बीच में। तो कार्टिलेज देखिए, कार्टिलेज पूरा डैमेज हो चुका है। बोन्स टेंड टू रब टुगेदर, तो घर्षण होती है बीच में, जैसे ना फ्रिक्शन होता है दोनों बोन्स के बीच में। तो मे भी किरण आंटी का ये हो रहा है कि गैप कम हो गया है, एंड उसकी वजह से जो फ्रिक्शन हो रहा है, दैट इज गिविंग हर पेन। बिकॉज बहुत सारे हमारे उधर नर्व्स होते हैं, बहुत सारे जो लिगामेंट्स होते हैं जॉइंट्स में होते हैं, वो पेन देता है। देन इन्फ्लेमेशन हैपेंस। कैसे रेडनेस दिखा है देखिए, आप देख रहे हैं जॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा रेडनेस दिखा है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। जो आइटिस होता है ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। उसकी वजह से हमें पेन होता है, सोरनेस होता है। क्या क्या होता है हम सिम्टम्स देखेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। चलिए सिम्टम्स के पहले रिस्क फैक्टर्स किस किस को हो सकता है, जैसे एज। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली अ डीजेनरेटिव डिजीज, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, चांसेस ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाते हैं। बट दिस इज नॉट लाइक कि आपको होना ही है ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्लीज डोंट गेट डिस्करेज कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको आर्थराइटिस आ रहा है, दैट इज अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट। इफ यू टेक केयर, मैं आपको आगे जो सिखाने वाला हूँ, अगर आप वो सब करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर स्टार्टिंग स्टेज में है, इट्स द बिगिनिंग स्टेज, जैसे अंजना आंटी ने बोला, आपका सिम्टम्स रिवर्स भी हो सकता है। मे बी पूरा क्योर नहीं होगा, बट यस यू कैन लाइक अवॉइड सर्जरी, यू कैन अवॉइड मेडिकेशन, जैसे अंजना आंटी ने किया। एज, ओबेसिटी, किसी ने बोला था ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ा कारण है इंडिया में। एक रिसर्च बता रहा है 69%, सॉरी इट्स नॉट 64, 69% ऑफ ओबीस पीपल, जो मोटापा है। ओबीस मतलब क्या होता है, अगर आपका बीएमआई वुमेन मेन का 25 के ऊपर, वुमेन का 30 के ऊपर, अगर आपका बीएमआई है मतलब यू आर इन ओबीस कैटेगरी। तो 69% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है नीस का, एंड 27% को हिप्स का है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आइदर पेन इन नी और पेन इन हिप्स। ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, अगर आपका वजन ज्यादा है, यू नीड टू ब्रिंग डाउन योर वेट। अगर मेरे से कम नहीं होता है, गो टू अ प्रोफेशनल। बट प्लीज प्लीज प्लीज, जिसका भी वजन ज्यादा है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वजन कम करिए। सिंपल एग्जांपल दूंगा एक गाड़ी का। ओके, मोस्ट ऑफ अस ओन अ व्हीकल हियर, सबके पास फोर व्हीलर है। फोर व्हीलर, सपोज मेरे पास टोयोटा इनोवा है। इनोवा में हम बैठ सकते हैं 7 लोग, 7 पीपल कैन सिट इन इनोवा, राइट। अगर इनोवा में सपोज 20 लोग बैठ गए तो क्या होगा, उसका सस्पेंशन, उसका जो शॉक एब्जॉर्बर है, क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दैट, ऑब्वियसली इट विल गेट डैमेज्ड। ओके, सो भगवान ने हमारा शरीर बनाया 65 किलो, 70 किलो, 75 किलो के लिए। हम अगर 100 किलो, 80 किलो, 90 किलो लेके चल रहे हैं, तो क्या होता है, प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर आता है, हमारे नीज में, हमारे एंकल्स में, एंड हमारे नीज, एंकल्स एंड हिप जॉइंट। ये तीन पे सबसे ज्यादा वजन आ रहा है आपका। ओके, सो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है एंड आपका वजन ज्यादा है, पहले चीज करना है, आपको जाना है कोई डाइटिशियन के पास, कोई डॉक्टर के पास, या कोई हेल्थ कोच के पास। आपको आपका वजन कम करना है। एंड अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको पेन नहीं है, तो पेन आने का वेट मत करिए आप। ओके, सो डोंट वेट कि हाँ मुझे जब नी पेन होगा तब मैं अपना वजन कम करूंगी। नो, वजन कम करना बहुत जरूरी है। ओबेसिटी इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो मेनी डिजीजेस। मोटापा ऐसी बीमारी है जो 100 बीमारी लेके आता है।
Okay, so if you are overweight, you are not healthy, you are unhealthy. एंड बहुत जो प्रेशर आता है गाड़ी का, आपका पूरा जो शेक का बॉडी का जो शॉक एब्जॉर्बर है, जो मेनिस्कस हमने जो गादी देखी, वो गादी पे लगातार प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। जो भगवान ने शरीर बनाया 60-70 किलो के लिए, उसमें हम 80-90-100 किलो लेके चलेंगे, 100% आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आना ही है। 69% इज अ बिग फिगर, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, इट्स अ बिग फिगर की 70% ओबीस पीपल हैव बीन डायग्नोस्ड। कितने तो लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते नहीं हो, तो डायग्नोस ही नहीं होते हैं, हैव बीन डायग्नोस्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। सो प्लीज ब्रिंग योर वेट डाउन। ऐसा नहीं है कि हमें आज कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, देर इज हाई चांस कि मोटापे की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्विकली आई जस्ट रन थ्रू द अदर रिस्क फैक्टर्स कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो बी रेडी फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। जेंडर, वुमेन, वुमेन हैव अ greater tendency, this is just I would say समथिंग रिलेटेड टू इंडिया ओनली, कि इंडिया में वुमेन को ज्यादा होता है। जॉइंट इंजरीज, अगर आपको कोई तरह की जॉइंट इंजरी हो गई, आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो चांसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर मच हायर इन दैट। मसल स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस, जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में किसी को मैं बोल रहा था दैट इफ यू आर इनएक्टिव, आपके जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं, मसल्स स्टिफ होने लगते हैं, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स जो हमने सीखा, क्वाड्रिसेप्स, वो अगर स्टिफ होगा आपका, अगर टाइट होगा, चांसेस ऑफ गेटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मच हायर। वीक बोन डेंसिटी, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हमने सीखा था विच इज वीकनिंग ऑफ द बोन्स, तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मसल वीकनेस, अगर आपके मसल्स इन जनरल वीक हैं, again it puts a lot of pressure on your joints. See, this is very important, this point is again very important. I'll stop the screen sharing, be 100% with me. जॉइंट्स जो होते हैं ना, जॉइंट्स एक तरह से वो हवे में, एक तरह से लाइक दिस, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, जॉइंट को सपोर्ट कौन कर रहा है, मसल्स। जो मसल्स होते हैं हमारे, तो अगर हम नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जॉइंट को मजबूत नहीं बना सकते हम मजबूत बनाते हैं मसल्स को। सो आपके अगर मसल्स वीक हैं, मसल्स वीक है, तो आपको उस एरिया का कहीं ना कहीं आइटिस, कहीं ना कहीं आर्थराइटिस होने का चांस होगा। अगर आपका लोअर बैक वीक है, कहीं ना कहीं आपको स्पाइन में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है आपको। अगर आपका हिप्स जो ग्लूट्स है, ग्लूट्स वीक है आपके, तो आपको हिप्स का होने का चांस हो सकता है। तो अगर आपके थाइज वीक है, आपके काफ मसल्स वीक है, यू कैन गेट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ओके, सो हमारे क्वाड्रिसेप्स, काफ मसल्स, मसल्स अराउंड द नी, जितने मसल्स होते हैं, उसको हम कैसे मजबूत करते हैं सीखेंगे हम, वी विल लर्न, मे बी द सेशन विल स्लाइटली एक्सटेंड, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मसल वीकनेस है, स्पेशली इन इंडिया ट्रेंड क्या होता है, ओनली मेन गो टू अ जिम्नेशियम, फीमेल्स थिंक की वेट ट्रेनिंग हमारे लिए नहीं है। वेट ट्रेनिंग इज द नंबर वन थिंग that you can do to prevent osteoporosis as well as osteoarthritis. So अगर आप कोई भी टीचर के साथ एक्सरसाइज करते हैं या खुद करते हैं, do include some form of strength training either through resistance bands, through dumbbells, through body weight। काफी कुछ हम कर सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जो हम होल्डिंग करते हैं हमारी क्लासेस में। डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 to 3 times इन अ वीक। ऐसा नहीं वीक में एक बार हम 5 मिनट कर लिया हमारा हो गया, नहीं, हमें वीक में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमारे पैरों को मजबूत बनाना, मसल्स को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज मसल वीकनेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस की इतना जो इंडिया में आर्थराइटिस है। इंडिया में लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते ही नहीं है। इंडिया में लोग देखते हैं हम वॉक कर लिए हमारे लिए काफी है, हम योगा कर लिए काफी है, दैट इज नॉट इनफ। ऑक्यूपेशन, किसी का ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि जैसे जो मजदूर काम करते हैं, लेबरर्स काम करते हैं, वो बेचारों को इतना वजन ढो के चलना पड़ता है, तो उनको चांसेस है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। जेनेटिक्स, अगेन कि हाँ माँ बाप को है तो बच्चों को हो जाता है, बट डोंट गिव द लाइक, कोई बहाना हमें नहीं बनाना है कि जेनेटिक्स की वजह से मुझे आर्थराइटिस है। दिस इज लाइक गिविंग अवे योर पावर। मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज अभी तक नहीं आया, बिकॉज आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई हेल्थ। तो मैं नहीं बोल सकता कि मेरे फादर को डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज होगा ही। नो, डेस्टिनी इज नॉट रिटन। एटलीस्ट आई कैन ईट द राइट फूड्स कि मुझे डायबिटीज नहीं हो। ओके, सो जेनेटिक्स वन ऑफ द रीजन, बट डोंट बी लाइक, इट शुड बी नॉट बी एन एक्सक्यूज टू नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सर्टन मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज, या आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो प्लीज अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को लाइटली मत लीजिए। डायबिटीज इज नॉट अ टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, इट्स अ लाइफस्टाइल कंडीशन। डायबिटीज बहुत इजीली रिवर्स होता है। somebody can type Sharan India in the chat box or maybe put their website link. So I'm associated with Sharan India also as a teacher, wherein they teach how to reverse diabetes, and thousands of cases. May Pooja, can you send the web link in the? This is not a PR, nothing. I don't get any commission from Sharan. I don't charge anything for my services there also.
सो बट दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत सस्ते में आपका डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं वो. देर इज गुड चांस दैट योर डायबिटीज कैन रिवर्स, बिकॉज डायबिटीज अगेन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिजीजेस विद इट. किडनी खराब कर सकता है, आपकी आंखें खराब कर सकती है, काफी कुछ हो सकता है. सो पूजा जस्ट सेंड द, शरण का डाल दिया है इन द चैट बॉक्स. यू कैन मे बी कॉन्टेक्ट देम इफ यू वांट टू रिवर्स योर डायबिटीज. दे आर वेरी गुड पीपल, यू कैन ट्रस्ट देम completely. या सो रिस्क फैक्टर्स क्लियर एवरीवन, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी है, मोटापा है, कोई जॉइंट इंजरी हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस है, यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ जॉइंट पेन्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स. सिम्टम्स भी क्विकली आई विल रन थ्रू. पेन, जैसे किरण जी ने बताया उनको घुटने में पेन है, इट इज अ सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. स्टिफनेस, बॉडी आपकी टाइट है अगर. टेंडरनेस, इन्फ्लेमेशन, बहुत बोलते हैं ना कि छूने से भी दर्द होता है, जॉइंट छूने से भी दर्द होता है, कई लोग बोलते हैं ना टेंडर हो गया, तो वो भी एक सिम्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस का. स्वेलिंग, अगर आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग है, इट कैन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट कैन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस. एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगर आपको स्वेलिंग है, कई तरह के जो आर्थराइटिस होते हैं उसमें स्वेलिंग इज अ वेरी कॉमन फीचर. ग्रेटिंग सेंसेशन, बार बार जो साउंड आता है ना कि हड्डियां बार बार कट 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 ऐसे आवाजें करती है, ग्रेटिंग सेंसेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन. दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. बोन स्पर्स, जैसे हड्डियां हमारी निकल जाती है ना, बोन ग्रोथ जो होता है, बोन स्पर्स, जगह जगह हड्डियां निकल गई, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. Now the treatment. See, I'm not a doctor, I'm not a registered health coach yet. It will take 6 months for my license, but yes, these are some of the treatments that I've learned from my doctor since my father had osteoarthritis. I've done some research myself also. So these are some of the treatment, but always take treatment from a doctor. ये session के basis पे please don't start or stop any treatment. You can start exercises, yes, but please don't start any treatment on the basis of this. सो देर आर सर्टन ड्रग्स, मैं नाम नहीं लूंगा ड्रग्स से, बिकॉज इंडिया में टेंडेंसी होती है कि अपने आप दवाइयां लेना चालू कर देते हैं. देर आर सर्टन ड्रग्स, सर्टन पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो आपका इन्फ्लेमेशन डाउन लाता है. दिस इज नॉर्मली द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पहले कोशिश करेंगे, जैसे किरण जी को डायरेक्ट सर्जरी नहीं बताया उन्होंने, ओके, सो डॉक्टर्स पहले दवाइयों से कोशिश करते हैं कि दवाइयों से अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल कर सके, तो दे ट्राई टू डिले सर्जरी. ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, अगर ज्यादा डैमेज हो गया ना कभी तो आपको सर्जरी कराना ही पड़ेगा, बिकॉज काफी नुकसान हो चुका है. बट डॉक्टर्स ट्राई कि चलो एक बार दवाई से हम ठीक कर ले. तो दीज आर गुड ड्रग्स, बट ज्यादा समय के लिए लेने से आपका लिवर, आपकी किडनी अफेक्ट होती है. सो प्लीज, डॉक्टर अगर 15 दिन के लिए दवाई बोलते हैं तो 15 दिन के लिए ही लीजिए आप, उसको जिंदगी भर नहीं लेनी है. दीज आर नॉट लाइक डायबिटीज मेडिकेशन, और दिस इज नॉट लाइक बीपी मेडिकेशन जो आप लाइफ टाइम ले सके. अगर आप पेन किलर्स लाइफ टाइम लेंगे, बिलीव मी, आपका लिवर किडनी सब खराब होने वाला है. तो जो भी आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, कि डॉक्टर तो लिख के दिए 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना लेना है, एंड लोग जिंदगी भर दवाइयां लेते हैं, दैट विल डैमेज योर एंटायर सिस्टम, स्पेशली लिवर एंड किडनीज. वो तो गारंटी आपका खराब कर ही देगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता है ये. फिजिकल थेरेपी जो हम सीखने वाले हैं, जो एक्सरसाइजेज हम सीखेंगे फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज अ वेरी वेरी गुड वे टू ब्रिंग डाउन योर इन्फ्लेमेशन, वेरी गुड वे टू इंप्रूव योर मोबिलिटी. स्टिफनेस कम कर देगा आपका, मजबूत बनाएगा आपको. एंड इफ डन प्रॉपरली, जैसे अंजना आंटी ने किया, इट कैन इनफैक्ट कंप्लीटली पुट यू इनटू रेमिशन ऑल्सो. फिजिकल थेरेपी, देर आर सर्टन इंजेक्शन जो होता है, स्टेरॉइडल इंजेक्शन होते हैं, सर्टन लुब्रिकेशन इंजेक्शन, बट दीज आर ऑल टेम्पररी, दीज आर नॉट परमानेंट. तो किरण जी, मे भी आपको कई लोग बोलेंगे कि ये इंजेक्शन लो आपका लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लो आपका पेन कम हो जाएगा. वो मे भी खाली डिले करेगा 1 आध साल के लिए. आई पर्सनली डोंट सजेस्ट दीज थिंग्स. पर्सनली मेरे भी डॉक्टर्स मेरे फादर को सजेस्ट नहीं किए थे, बिकॉज दीज आर लाइक, चोट लग गई उस पर बैंडेड लगा दो, उसका इलाज कुछ नहीं करता है, जस्ट खाली डिले करेगा. यू विल कीप सफरिंग एंड अननेसेसरी. कभी ना कभी तो दिस जॉइंट रिप्लेसमेंट जो हम सीखेंगे अभी, PKR UKR हम सीखेंगे, व्हाट आर दीज, अल्टीमेटली एंड इज जॉइंट रिप्लेसमेंट. अगर आपका ज्यादा डैमेज हो गया, एंड बिलीव मी, इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग. अगर आप सफर कर रहे हैं, अगर आपका नी पूरा घुटना डैमेज हो चुका है, एंड डॉक्टर आपको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करा लो, तो करा लीजिए. योर लाइफ क्वालिटी, इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी. आई थिंक सक्सेस रेट इज मोर देन 95% जॉइंट रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट. एंड मेरे फादर ने तो दोनों ही रिप्लेस करा है, तो आई नो सफरिंग खाली 10 से 15 दिन होती है. अभी आप जिंदगी भर सफर करेंगे, बाद में आप खाली 15-20 दिन सफर करेंगे, या मे बी महीना भर सफर करेंगे, उससे ज्यादा आप सफर नहीं करेंगे. योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव, योर लाइफ स्पैन विल इंक्रीज. कैसे इंक्रीज होगी लाइफ स्पैन? बिकॉज अभी आप जो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, दूसरा जब आप वॉकिंग स्टार्ट कर देंगे, एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, आपकी हार्ट के लिए अच्छा है, आपके अदर ऑर्गन्स, लंग्स के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है. तो डोंट I सफर. started walking. I started walking. I was not able to walk more than 2 minutes, but ओके, now I can walk 10 minutes.
in the Okay. evening, in the morning, 2 times. But what happened, मेरी प्रॉब्लम पता क्या रही मनीष, I lost my son. तो उसके बाद आई यूज टू सिट, मैं एक ही जगह पे 1 साल जैसे बैठी रही. I was not moving. I know Vinridhi for the last 13 years. So she used to come to me. I used to go and उन्होंने मुझे सबसे निकाला. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ये प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, मैं चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने सब छोड़ दिया था. और मैं बहुत वॉक करने वाली मतलब हूँ, कि आई यूज टू गो फॉर 1 hour इन द मॉर्निंग, मतलब पहले. लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को खराब कर लिया. तो नाउ जब मैंने आपका सुना तो मेरे को लगा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स. बट उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ मेडिकेशन दे रहे हैं अभी. तो मेरे को दी ने बोला कि टॉक टू मनीष, वो मतलब बताएगा, तो देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू. No, दैट्स good व्हाई. that you came. No, good that you came to the session today. आगे हम सीखेंगे आंटी, आप और क्या कर सकते हैं हम आगे सीखेंगे. श्योर That श्योर what else कंटिन्यू. can you do and what mistakes that you are doing हम सीखेंगे अभी. So these are the ओके. modality of treatment. Osteoarthritis अगर किसी को है ना, normally डॉक्टर ये सभी सजेस्ट करेंगे. इसके अलावा और अगर कोई सजेस्ट करता है कि आप ये करो वैसा करो, there are many like quacks who like सब फायदा उठाते हैं. Believe me, इस मैंने बहुत रिसर्च किया है in other form of pathies also, homeopathy and Ayurveda and Unani, and for my dad I tried everything, nothing worked. This thing only worked. ये जो 5 चीजें हैं इसमें भी ultimately he had to go for a replacement surgery because his condition was very bad. बट सर्जरी से डरना नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, लोग सर्जरी से डरते हैं, अननेसेसरी सफर करते हैं लाइफ में. अरे क्यों सफर करें यार, जब इतना अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है विद सच अ गुड सक्सेस रेट. एंड मे बी जब आप 60-70s में करा रहे हैं तो 20 साल चलेगा आपका घुटना, है ना, नया घुटना 20 साल चलेगा. तो क्यों हमारे गोल्डन ईयर्स हम सफर करें? व्हाई शुड वी सफर इन आवर गोल्डन ईयर्स? सी आई एम नॉट पुशिंग Manish, यू can you टुवर्ड्स share सर्जरी. something? Just a Yeah. sec, just a sec. See, I'm not pushing you towards surgery. First should be prevention, जो अंजना आंटी ने किया. First should be prevention, कि हम नेचुरल वे में उसको ठीक करने का एटलीस्ट 3-4 महीने समय दें उसको. बट अगर ठीक नहीं हो रहा है, अगर दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है आपका, अगर एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं हो रहा है, why not like go for the best treatment? Yeah, बलजीत आंटी. Yeah, what I wanted to say is the same thing what you are saying right now. Even doctor told me for operation only, like surgery. But I'm literally pushing it because I'm not in favor. But as you are going through, you said, of course, you should go for it. Even still, I'm not satisfied in my mind that I should go for it. I'm See, worsening. My case is worsening. That is I'll give true. you a checklist. I'll give you a checklist. This is very important. This is out of the presentation. मैंने discuss नहीं किया था, since we have live cases now. See, what should be the checklist? Ask yourself few questions. अपने आप को कुछ सवाल पूछने हैं. एक तो पहली बात, आपको क्या लगता है आप कितना साल जिएंगे? अगर आपको लगता है आपको 20-25 साल और जीना है, ओके, तो आप कराइए सर्जरी. नेक्स्ट, आर यू एबल टू वॉक विदाउट पेन? Is it affecting my daily life? If it's affecting your daily life, go for it. You won't regret. Nobody will regret. My father is like, मुझे तो नई एनर्जी आ गई है, I can like do my activities. तो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं ना, डॉक्टर knows more. प्रॉब्लम इज दैट दिस इज नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी. अगर डॉक्टर कल बोल देगा, भगवान ना करे, किसी को डॉक्टर बोल दे बाईपास करना है, तो वी डोंट वेट फॉर अ वीक ऑल्सो. हम तुरंत बाईपास कराते हैं कि हार्ट अटैक नहीं आ जाए. प्रॉब्लम विद इलेक्टिव सर्जरीज आर दैट, इलेक्टिव सर्जरी में ये होता है हम उसको इतना लास्ट तक ले जाते हैं ना कि तब तक आपका वो हार्ट खराब कर देगा, तब तक आपकी और बाकी कुछ खराब, काफी कुछ खराब कर देगा आपका तब तक. तो बलजीत जी, आप खाली अपने आप को ये पूछिए आप कि इज इट अफेक्टिंग माय डेली लाइफ? इज इट अफेक्टिंग, यस और नो? Yeah. This. इज इट अफेक्टिंग योर एबिलिटी टू लाइक डू योर ड्यूटीज फुली, जो आप ड्यूटीज कर रहे हैं जीवन जांच में या जो भी कर रहे Yes. हैं? इज इट Yes. अफेक्टिंग? आर यू हैविंग डिफिकल्टी इन वॉकिंग? Of course. हैव यू ट्राइड मेडिकेशंस? Yes. बट ऑब्वियसली उससे भी कम नहीं हुआ, बराबर? Yes. Yeah. See, if you have tried all this now, go for surgery straight away. You will bless me. You will thank me. I know very good doctors, very humane doctors जो आपको इंसान जैसे ट्रीट करेंगे. And they will like, again, बहुत सारे डॉक्टर्स है, there are hundreds of, हर गली नुक्कड़ में आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलेगा आज के दिन. But choose a good doctor, बहुत इंपॉर्टेंट है, because this is a skill. जॉइंट रिप्लेसमेंट इज अ स्किल है. बिकॉज कोई अगर उल्टा सीधा कर दिया, बिकॉज कारपेंटर कैसे Yeah. होता है, तो नॉर्मली ऑर्थोपेडिक सर्जन आर लाइक कारपेंटर्स ओनली. तो स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गोइंग बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का बैकग्राउंड. तो आप समझ के करिएगा, हाँ, किसी ने कराया है, चलो हाँ, कि मनीष के फादर ने कराया तो अच्छा होगा, या मेरी फ्रेंड के उसने कराया तो अच्छा होगा. रेफरेंसेस लीजिए, खुद स्टडी भी करिए, डॉक्टर का बैकग्राउंड देखिए, उसको कितने, मैं तो सब देखता था, डॉक्टर को कितने मार्क्स आए, सब देखा था. मैं डॉक्टर का पूरा बैकग्राउंड स्टडी किया था मेरे फादर का सर्जरी कराने के पहले. डीप, आई वेंट वेरी डीप, बिकॉज आई वांट अ गुड डॉक्टर टू ट्रीट माय फादर. आई डोंट वांट एनी क्वैक की कोई भी यार. डॉक्टर्स तो और गली नुक्कड़
पकड़ में सब बोलेंगे आई एम द बेस्ट, सब डॉक्टर बोलेंगे आई एम द बेस्ट, बट हाँ डेंटिस्ट भी जैसे होते हैं डॉक्टर अमनदीप फंस रहे हैं, डेंटिस्ट भी एक तरह का आर्ट, इट्स आर्ट, डेंटिस्ट्री इज एन आर्ट, ओके। ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज एन आर्ट, क्यों कैसे वो सर्जरी कर रहे हैं आपका, ओके। तो चूज अ गुड डॉक्टर बलजीत आंटी, यू वोंट रिग्रेट एट ऑल। कोई ठीक है, अगर थैंक यू आपके सो ये मच। सब मैंने आपको चेकलिस्ट सबको दे दिया, ये चेकलिस्ट आप फॉलो करिए एंड करा लीजिए ट्रीटमेंट। वाई सफर अननेसेसरी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग जीवन जांच में, वाई सफर अननेसेसरली। आप मे भी जीवन जांच को अभी दुबई ले गए, फिर अमेरिका अमेरिका तक ले जाएंगे आप लोग फिर उसको, या या तो जैसे इसीलिए मैंने मैं बताया, दुबई गई नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी ज्यादा। या देखिए देखिए सी हाउ इट इज अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट वर्क। हाँ, तो जैसे मैं क्विकली खाली कवर करूंगा, दो तरह के सर्जरी होते हैं, सिंस अगर कोई लोग सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं, देयर आर टू टाइप्स। वन इज अ कन्वेंशनल वे, देयर वे वेयर दे रिप्लेस ऑल द थ्री कंपार्टमेंट, जो तीन कंपार्टमेंट मैंने बताया था, दिस इज लाइक बिफोर एंड आफ्टर। तो देखिए उन्होंने पूरा नी मतलब खाली वो नी का सरफेस रिप्लेस करते हैं। बाय द वे डोंट वरी कि आपका पूरा घुटना बदलने वाले, नी रिप्लेसमेंट पूरा घुटना नहीं बदलते हैं, दे जस्ट जो सरफेस ऑफ द नी होता है। तो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं डैमेज नहीं है, राइट साइड जो प्रोस्थेटिक्स जो लगाया, मतलब जो उन्होंने, इट इज मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक। तो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, जो सी शेप्ड का इन्वर्टेड सी शेप, दैट इज अ मेटल। एंड नीचे वाली जो गादी है, जो मेनिस्कस है, उधर एक प्लास्टिक लगा देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट रिप्लेस होता है, डोंट वरी कि आपका पूरा घुटना बदलने वाले हैं ना। ऑल्दो इसका नाम है टोटल नी रिप्लेसमेंट, बट दे जस्ट चेंज द सरफेस ऑफ योर नी। हाँ, ऑपरेशन हार्डली टेक्स, पीकेआर टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं। 3 दिन में छुट्टी मिल जाती है, 15 दिन, 20 दिन में, 1 महीने में आप मे बी आप नॉर्मली अपने काम पे जा सकेंगे, ओके। दिस इज टोटल नी रिप्लेसमेंट, बट प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट ये पार्ट होता है। आई जस्ट शो यू, आई गो बैक टू द anatomy of the knee. This is like a modern way of treating osteoarthritis, where they don't replace all the compartments of the knee. This is called as partial knee replacement. So I'll just share the anatomy of the knee again, because ये important है, you can question your doctor. तो बलजीत जी आप डॉक्टर कह जाएंगे कि डॉक्टर आप कंप्लीट करेंगे कि पार्शियल करेंगे। जो राइट वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस थिंग, मेनिस्कस का जो राइट वाला पार्ट है, जो अंदर का medial medial compartment, this is called as medial compartment. This compartment is affected in most of people. So doctors nowadays, what the new doctors are doing, they are just changing the अंदर का पार्ट, जो चेंज करते हैं, घुटने का जो अंदर का पार्ट है ना, वही चेंज करते हैं। फायदा उसका क्या होता है कि सर्जरी एक तो छोटी होती है, रिकवरी फास्टर होती है, एंड जो अच्छा कंपोनेंट है उसको क्यों बदले। तो मेरे एक दांत में रूट कनाल हुआ, तो डॉक्टर मंदी कह जाऊंगा तो एक ही दांत का रूट कनाल करेंगे, बाकी दांत का रूट कनाल नहीं करेंगे, राइट। तो एक तरह से अगर आपका 3 कंपार्टमेंट है घुटने में, एंड आपका एक ही घुटना अगर खराब है, एक ही कंपार्टमेंट खराब है आपका, तो डॉक्टर खाली उसी को रिप्लेस करते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी, सस्ती भी होती है, इट्स चीपर ऑल्सो, एंड इन द लॉन्ग रन इट इज बेटर ऑल्सो। नाउ डेज डॉक्टर आर मोर लाइक शिफ्टिंग टू अ पार्शियल सर्जरी। दिस इज कॉल्ड एज यूनी कंपार्टमेंटल, यूकेआर बोलते हैं उसको। दिस इज यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि डॉक्टर शाल वी गो फॉर, बिकॉज यू हैव अ राइट एज अ पेशेंट टू नो कि आपको क्या, आपके साथ क्या कर रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम डूइंग। अगेन ऑब्वियसली कोई सर्जरी खुद नहीं करेगा यहाँ पर, आई होप nobody will do their surgery. So this is what a UKR looks like. So I did all this research for my father actually. Yeah, this is unicompartmental knee replacement, wherein देखिए उन्होंने ना घुटना, देखिए खाली मीडियल, खाली अंदर वाला हिस्सा खराब था, तो खाली अंदर वाला हिस्सा रिप्लेस हुआ, देख रहे हैं आप। या दिस इज नोन एज यूनिकम्पार्टमेंटल और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। जो एक्सरे में ऐसा दिखेगा, देखिए एक्सरे में कैसे स्पेस कम हो गया था, जो येलो मार्क देख रहे हैं आप, कम हो गया था, तो डॉक्टर ने खाली उतना सा स्पेस बढ़ा दिया है, आपका पेन गायब। 1 घंटे का सफरिंग है आपका, या 15 दिन का सफरिंग है, पूरी जिंदगी सफर मत करिए आप, डोंट सफर, ओके। नाउ अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, नाउ वी कमिंग टू प्रिवेंशन। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ये बलजीत जी के लिए नहीं, बलजीत जी नाउ दिस थिंग वोंट वर्क मच। हेल्प करेगा बट उतना काम नहीं करेगा। दिस इज फॉर पीपल कि हाँ, जिनको या तो सिम्टम्स का ऑनसेट हुआ है, मे बी पीपल लाइक अंजना आंटी, या यंगस्टर्स जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो डाइट में करिए। डेयरी इज अ मिथ, डेयरी इनफैक्ट विल मेक योर बोन्स वीक, ओके। मैंने पहले सबसे पहले डेयरी इसके लिए डाला, इंडिया में क्या होता है, कैल्शियम मतलब बेटे को और दूध पिलाओ, दिन में 3 गिलास दूध पियो, 4 गिलास दूध पियो, और आपको कमजोर कर देगा। उसके रिप्लेसमेंट है आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, राइस मिल्क। आई क्विकली, आप एक फोटोग्राफ ले सकते हैं, बिकॉज सी मैंने काफी बार कवर किया है ये, मैंने काफी बार कवर किया है। एक फोटोग्राफ ले लीजिए कि ये सब खाने से आपको ज्यादा कैल्शियम मिलेगा। दीज आर बेसिकली सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। एंड कैल्शियम की गोली कब लेनी, जब डॉक्टर बोले तभी लीजिए। प्लीज डोंट स्टार्ट सेल्फ मेडिकेशन की मैं 40 साल की हो गई हूँ तो मुझे कैल्शियम की गोली खानी चाहिए। अगेन अ बिग मिथ। ये सब चीजें खाइए जो मैंने लिखी है, ये 100% आपका कैल्शियम नीड विल बी फुलफिल्ड। अवर बॉडी डजंट लाइक केमिकल्स, बॉडी को नेचुरल खाना पसंद है। बट हाँ, अगर डेफिशिएंसी है, डॉक्टर बोले तो ही कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिएगा, अदरवाइज डोंट टेक अ कैल्शियम सप्लीमेंट ऑन योर ओन, ओके। लास्ट में देखिए, लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं ओमेगा 3।
तो omega 3 is very important for our joints. It is proven, scientifically proven, that omega 3 supplements do help. So this is one supplement very safely one can take. Again, ask your doctor or dietitian. I didn't suggest any names here. Flax seeds, chia seeds are very high in omega 3. They are very high in omega 3. And certain cases, certain advanced cases of osteoarthritis में fish oil also helps. Although I'm a vegan myself, but yes, fish oil supplements do help in joint issues. Joint में मुझे काफी मदद मिली थी. I took about for 12-13 साल मैंने खुद fish oil लिया था, and that really helped me bring down my inflammation. So omega 3 बहुत important है. So sources of omega 3 हम खुद research भी कर सकते हैं. It's not very difficult. तो include more of omega 3 fatty acids in your food. एंड लास्ट में एंटी इंफ्लेमेटरी फूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने क्लास के स्टार्ट में खाली ऐड किया. सो जिंजर, टर्मरिक, अजवाइन, लहसुन, सेलेरी लीव्स, these are very good sources of anti-inflammatory foods. Okay, तो try and include omega 3 and anti-inflammatory for joint health. And ऊपर वाले जितने थे ना, almond milk, leafy greens, these are sources of calcium. So डाइट में अगर ये सब चेंजेस करेंगे ना, अगर आपको पेन है भी, शायद आपका पेन कम हो जाएगा इससे. ओके, शायद आपका पेन कम हो जाएगा. बट दिस इज अगेन नॉट अ ट्रीटमेंट, नॉट अ ट्रीटमेंट. डोंट रिलाई ओनली ऑन डाइट. डाइट के साथ में क्या जरूरी है? सो दीज इज नॉट फॉर बलजीत आंटी, नॉट फॉर आई थिंक क्या नाम था आपका जिन्होंने पहले शेयर किया था, किरण आंटी है. ये आपके लिए नहीं है. ओके, दीज एक्सरसाइजेस आर फॉर दोज हु वांट टू प्रिवेंट. मैंने एक्सरसाइज को दो पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज एक्सरसाइज फॉर प्रिवेंशन, जिनको नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कोई दर्द नहीं है, एंड एक जिसको दर्द है. तो पहले हम सीखेंगे उनके बारे में जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है. पहले हम उनके बारे में सीखेंगे. ओके, बी वेरी क्लियर. ये जिसको पेन है ये सब स्टार्ट मत कर दीजिएगा, आपका पेन एग्रेवेट हो जाएगा. ओके, वॉकिंग. तो बलजीत जी, किरण आंटी, आपके लिए वॉकिंग खराब है. ऑलरेडी उस काफी फ्रिक्शन हो रहा है, ऑलरेडी आपका मेनिस्कस डैमेज हो चुका है, ऑलरेडी कार्टिलेज डैमेज हो गए. अगर आप वॉक करेंगे तो किरण आंटी, आई एम सॉरी टू से, बड़ा प्राउडली बोल रहे थे कि मैं ज्यादा वॉक कर पा रही हूँ. आपको वॉक छोटे छोटे कर रहे हैं, 5-5 मिनट या 10-10 मिनट करके ही वॉक करना है आपको. वॉकिंग करना है तो वॉकिंग स्टिक के साथ कर सकते हैं, उसमें प्रेशर कम पड़ेगा आपका. ओके, दूसरा One जिस thing, can I wear a kneecap? नो, it doesn't help at all. It's a myth. Okay, okay, continue. Kneecap braces, they don't help at all in osteoarthritis. मेरे डॉक्टर ने भी सजेस्ट नहीं किया, पर मैं समटाइम्स जब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आई वियर इट एंड आई फील कंफर्टेबल. दैट्स व्हाई No, आई see, एम that आस्किंग. is comfortable, मतलब कि आपको अच्छा लगेगा. कोई टाइट आपको पकड़ हाँ, के रखा है ना, यस, आपको अच्छा. थोड़ा स्टिफ Yeah, हो गया और but पकड़ा हुआ है किसी ने. यस, आई नो. that is not. See, again मैंने मेरे शेयर स्क्रीन बंद किया because again a very big myth. इंडियंस में बहुत बड़ा myth है. तो हमारा पड़ोसी डॉक्टर बन जाता है, हमारी चाची डॉक्टर बन जाती है, हमारा काका डॉक्टर बन जाता है. कोई बोलेगा नी ब्रेस पहनो, कोई बोलेगा कॉलर पहन लो. अगर मेरे को या गर्दन में पेन था ना, मुझे लोग क्या बोलते थे, मुझे एंक्युलोइंग स्पॉन्डिलाइटिस था, तो मेरे एक रिलेटिव बोलते थे, मनीष वो गर्दन में जो कॉलर में पहनते ना, क्या बोलते, दैट थिंग, क्या दिमाग से उतर रहा है मेरे, क्या बोलते हैं, एनीबॉडी, डॉक्टर भी, वो पहन लो तुम. या बैक में पेन है तो वो पट्टा बांध के घूमो तुम, तो मैं पट्टा बांध के घूमता था. अरे दिस थिंग डजंट हेल्प इन आर्थराइटिस एट ऑल. It's a big myth. Don't waste your money and don't waste your time and energy on this food silly things. जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ना, 5 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी दुनिया में, कोई ट्रीटमेंट नहीं है. आयुर्वेदिक वाले बोले हमारे पास केरला आ जाओ, मसाज करा लो, ये करा लो, टेम्पररी आपको फायदा मिलेगा, टेम्पररी. यस, 100% मसाज विल हेल्प, हीट थेरेपी विल हेल्प, बट दैट इज नॉट अ क्योर. That is not a permanent cure. So don't waste your precious time, money, energy on these things. अंधविश्वास के पीछे नहीं जाना है हमें. मैंने काफी गलतियां मैंने खुद करी है, काफी मैंने सफर किया है, हजारों लाखों बर्बाद भी किए इन सब चीजों के पीछे. आप प्लीज ये सब में मत जाइए. अगर आपको एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, that is not the time for massage, that is not the time for diet, that is not the time, that is the time for treatment. तो किरण आंटी मत जाइए सब में ना, पट्टा वट्टा मत मांगिए, कुछ नहीं होने वाला. वो टेम्पररी आपको अच्छा फील कराएगा, टेम्पररी पहन लीजिए, बट इलाज नहीं है. ओके, good that these points are coming up. I'll just add them in my presentation later on. So जिसको प्रिवेंट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए जो हम क्लासेस में करते हैं. जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, वो वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग सब कर सकते हैं. ये जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, कोर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे रीना जी आई थिंक स्टार्ट में बोला, उनको बैक वीक है. इफ योर कोर इज वीक, it will put more pressure on your joints. So core अगर आप होल्ड करेंगे टाइट, if you hold your core tight, it will put less pressure on your joint. इसके लिए मैं मेरी क्लासेस में इतने सारे जो कोर एक्सरसाइजेस कराता हूँ. आई नो सब लोग मुझे बहुत मन में कुछ ना कुछ बोलते होंगे कि यार कितना मेहनत करा रहा है, बट आई केयर फॉर योर नी ऑल्सो. ओके, तो कोर स्ट्रेंथनिंग करने से आपके घुटने पे ऑटोमेटिकली प्रेशर कम पड़ेगा. बैलेंस एक्सरसाइज जो हम करते हैं योगा में बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू प्रिवेंट, अगेन दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू प्रिवेंट. जिसको हो गया उसके लिए बैलेंस नहीं करना है.
जिसको अगर घुटने में प्रॉब्लम है, आप एक पैर पे अगर बैलेंस करेंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, दिस इज ओनली फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ब्रिंग डाउन योर वेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। whether you have osteoarthritis, whether you have any condition, diabetes, cancer, heart disease, hypertension, कुछ भी बीमारी है आपको, वजन कम करिए आपका, 80% प्रॉब्लम्स आपके ऐसे खत्म हो जाएंगे। अवॉइड प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, जैसे शुरुआत में किरण जी आई थिंक बोल रहे थे, बहुत देर तक बैठना नहीं है हमें एक जगह पे, एक्टिव रहिए। हम वी आर मेंट टू मूव, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ओके, मसाज हेल्प्स टू प्रिवेंट नॉट टू ट्रीट। ओके, सो मैंने प्रिवेंशन में मसाज डाला है, कोई भी केरला जाके अपने लाखों करोड़ों वेस्ट मत करिए उधर। बहुत सब आपको बोलेंगे हमने ऐसा ठीक किया, हमने वैसा ठीक किया है। ठीक मतलब क्या होता है? सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए मिल जाएगा। माई गोल इज कि आपको 20 साल तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सो डोंट थिंक कि मसाज से कोई आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक कर देना, हाथ जोड़ लो उससे, भैया ठीक है, मेरा डॉक्टर मेरा ज्यादा जानता है। ओके, नाउ दिस इज फॉर पीपल विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है? वॉकिंग कम से कम करना है उनको। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वॉकिंग विल एग्रावेट योर पेन, इट विल एग्रावेट द डीजनरेशन स्पीड। तो मेरी बिल्डिंग में देखता हूँ कई लोग जो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं, बट वो सोशलाइजिंग के लिए कि वॉकिंग में मजा आ रहा है, बस मजे के लिए चलना है। अरे वो सजा बन जाएगी, आपके घुटना और खराब कर देगा आपका वो। अवॉइड लॉन्ग वॉक्स। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब ये नहीं कि वॉक बंद कर देना है। 5-10 मिनट वॉक करिए, फिर बैठ जाइए, फिर 5-10 मिनट वॉक करिए, फिर बैठ जाइए, आराम से करिए। सो अंजना आंटी को मैं क्यों बार बार अवॉइड करता हूँ? अंजना आंटी बात मानती नहीं मेरी, आधी आधी घंटा वॉक करेगी। नो, इट विल हार्म यू इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग वॉक्स, जैसे मेरी स्टूडेंट के साथ हुआ था पहले, मैं बोल बोल के थक गया उनको कि आप प्लीज 20 मिनट से ज्यादा वॉक मत करिए। वो एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा वॉक करती थी, मुझे स्क्रीनशॉट भेजती थी, 11,000 स्टेप, 20,000 स्टेप। गई काम से, उनका बैक खराब हो गया, सब खराब हो गया। एंड तो प्लीज प्लीज प्लीज, जिसको नी इश्यूज है, अंजना आंटी आप तो प्लीज मेरी बात मानिए, एटलीस्ट आधी घंटा वॉक अच्छा नहीं, 10 मिनट वॉक करके बैठ जाइए, फिर 10 मिनट वॉक करके बैठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए एंड फिर आप करिए। क्या कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमें एक्सरसाइज छोड़ दी, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बट लॉन्ग वॉक्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। अवॉइड अनसपोर्टेड बैलेंस एक्सरसाइजेस। जैसे मैंने बोला ना, एक पैर पे खड़ा होना मतलब उस घुटने पे आप ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं। बहुत देर तक खड़ा भी नहीं रहना है हमें। क्या हम कर सकते हैं? साइकिलिंग कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। जो स्टेशनरी साइकिल होता है, जो जिम में होता है या घर में हम लाके करते हैं, वो साइकिल आप करिए। एलिप्टिकल मशीन, जो मैंने फोटो लेफ्ट में डाला है, अगर आप देख सकते हैं, फोटो है एलिप्टिकल मशीन, दैट इज वेरी गुड, वो काफी अच्छा होता है। स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। अगर आपके पास स्विमिंग पूल का एक्सेस है, आपको स्विमिंग आती है, दिस इज अ नॉन वेट बेरिंग थिंग। स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। पानी में आप वॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, या गुड पॉइंट। अगर आपको वॉक करना है ना, पानी के अंदर वॉक करिए, स्विमिंग पूल के अंदर वॉक करिए, दैट विल रियली हेल्प यू। ओके, स्ट्रेंथन द क्वाड्रिसेप्स, जो हमारे थाई मसल्स एंड काफ मसल्स है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो हम सीखने वाले हैं अभी। लाइंग डाउन एक्सरसाइज करिए, जितना ज्यादा आप लेट के करेंगे उतना ज्यादा जॉइंट पे प्रेशर कम पड़ेगा। प्राणायाम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, जो बोलते हैं ना जॉइंट का फ्लूइड, प्राणायाम से इंप्रूव होता है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड यूज वॉकिंग एड्स, मतलब बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है। एंड डोंट वरी, अगर आपको कुछ घुटने का प्रॉब्लम है, टेम्पररी आप कोई वॉकिंग एड लेके चल लीजिए, आपका घुटना बचा हुआ रहेगा, वरना और डैमेज बढ़ते जाएगा। तो यू कैन टेक अ फोटोग्राफ, अगर आपको फोटोग्राफ लेनी है इसकी, यू कैन टेक अ फोटोग्राफ कि क्या क्या एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट, सॉरी टू अवॉइड एग्रेवेशन, या जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है क्या कर सकते हैं। आई जस्ट शेयर द प्रीवियस स्क्रीन अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन था वो, कि हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो प्लीज एटलीस्ट माई स्टूडेंट्स, आप लोग तो क्लासेस में आइए, फॉलो करिए, बाकी लोग भी जो खुद भी कर रहे हैं और कोई टीचर के हाथ में कर रहे हैं, जस्ट शेयर दैट स्क्रीन अगेन। यू कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, सो सिंस मैंने बता दिया, बट मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खाली बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स प्रैक्टिस सम एक्सरसाइजेस। हम आज कुछ एक्सरसाइजेस, एनी क्वेश्चंस हैव एनीबॉडी हैज टिल नाउ, और एनी शेयरिंग यू वांट टू डू, because after exercises we will just close the session. Any questions anybody has? Not any personal questions, general questions regarding osteoarthritis, regarding arthritis, regarding पड़ोसी ने कुछ बोला, regarding डॉक्टर ने कुछ बोला, कि फादर ने कुछ बोला, मदर ने Yeah. कुछ बोला। Hi, Manish. I think let's see your exercises first. That's very Yes, important for all of us. exercises are very important. Yes, to learn is very important to learn. So I'll just turn off my camera for a while. I just need to change my position. I'm just turning off my camera. Yes, so if you have a mat, जो जिसको नी पेन नहीं है, प्लीज कम ऑन अ मैट। जिसको मे बी नी पेन है, यू कैन सिट ऑन अ चेयर, हम चेयर पे भी बैठ के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।
तो और टेक अ योगा मैट, अगर योगा मैट है आपके पास तो नथिंग लाइक इट विल बी हेल्पफुल कि योगा मैट के साथ हम करें। आई एम जस्ट चेंजिंग माई पोजिशन, इट विल टेक 1 मिनट। तो मे बी यू कैन थोड़ा उठ के हम वॉक भी कर सकते हैं, वी कैन वॉक ऑल्सो। सेशन विल गो ऑन टिल मे बी 8:15, सो प्लीज बेयर विथ मी, मुझे और झेल लीजिए आप आधे घंटे के लिए। आई एम जस्ट चेंजिंग माई पोजिशन। सो पहले हम सीखेंगे खड़ा कैसे होना है, ओके? बिकॉज जो नी का अलाइनमेंट खराब होता है, कई लोग सही से खड़े नहीं रहते, ओके? सो पहले हम सीखेंगे हम बराबर से खड़े कैसे हैं। Okay, so please everybody on your cameras if possible. It's always better for me to see what you are doing. Yeah, here I am. Don't worry, मैं कहीं भाग नहीं गया हूँ, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि चलो सेशन खत्म, अभी मेन पिक्चर बाकी है। So I have done my training from the Yoga Institute Santa Cruz, as well as I've learned from many good coaches in the world. So please on your cameras, camera on नहीं करेंगे तो मजा नहीं है। Everybody, please on your cameras. Stand up, please stand up everybody. सब खड़े हो सकते हैं एक बार। Everybody stand up on the mat. So this is my role as a coach. Yeah, स्नेहा जी, सोनिया जी, गुड। कैमरा ऑन करेंगे तो आपको आपका ही करेक्शन होगा, आपका ही फायदा है। अगर कैमरा ऑफ रखेंगे तो आपका ही लॉस। आई कैन आपने ओनली बोला से चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, तो एक बार हम खड़े रहना सीखेंगे, कैसे रहना पहले सीखेंगे। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू स्टैंड प्रॉपर्ली, ओके? सो सी फर्स्ट आई विल टीच रॉन्ग वे ऑफ स्टैंडिंग, ओके? गलत तरीका क्या है? नॉर्मली लोग ऐसे खड़े होते हैं, सी लाइक दिस। पैर उनका जो टोज है बाहर की तरफ होता है, दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टैंड। अगर आप ऐसे खड़े रहेंगे ना, आपका हिप का अलाइनमेंट, नी का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा लॉन्ग रन में। तो यू आर लाइक एग्रेवेटिंग इट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, टो अंदर करिए, खड़े रहना है ना, दिस शुड बी पैरेलल, द आउटर पार्ट ऑफ द लेग्स, दिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब थोड़ा सा पैर अंदर की तरफ। तो अगर कैमरा सब टर्न करेंगे नीचे, मुझे सबका देखना है सब कैसे खड़े हैं। तो बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू स्टैंड थ्रू आउट द डे, नॉट ओनली इन द मॉर्निंग और नॉट ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हम काम पे भी जाते हैं, हम वॉक भी करते हैं, हमें ऑलवेज हमारा टोज एक रेलवे ट्रैक की तरह होना चाहिए। Am I audible? Show me a thumbs up because सब लोग ऐसे एकदम stand. Okay. So this thing is very important for the alignment of your hip, alignment of your knees. Okay. ऐसे हमें खड़ा होना है। वॉक कैसे करना है ना, वॉकिंग। अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है यहाँ पर, इफ समबडी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑलवेज वॉक थोड़ा सा नी को बेंड करके करिए। एंड पहले हमारा हील नीचे टच होना चाहिए एंड देन टोज, लाइक दिस। मैं चल रहा हूं ना, लाइक दिस। ऑब्वियसली कॉन्शियसली सबको ऐसे नहीं चलना है, डोंट लिफ्ट। कई लोग ऐसे बहुत ज्यादा लिफ्ट कर रहे हैं। कॉन्शियसली मेडिटेटिव वॉक करिए, अभी सब ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए एक बार। हम जब लैंडिंग करेंगे ना, पहले हमारा हील लैंड करेगा एंड देन माय टोज विल कम डाउन लाइक दिस। आपके घुटने पे प्रेशर कम आएगा। सो किरण जी, बलजीत जी, आप लोग ऐसे ही करिएगा। आप लोग जो वॉक करेंगे ना, ऑलवेज हल्का सा नी उठाइए, हल्का सा बेंड करिए, पहले हील नीचे रखिए, फिर टोज नीचे रखिए। डू माइंडफुल वॉकिंग। अंजना आंटी थोड़ा सा स्लो करिए एक बार, प्रैक्टिस है, दिस इज वॉक, दिस इज वॉकिंग प्रैक्टिस वी आर डूइंग, ओके? कम एवरीबडी ट्राई, गुड। हरप्रीत, आपका टोस्ट थोड़ा सा बाहर है अभी भी, आई कैन सी हरप्रीत। हरप्रीत अरोरा, आपका टोस्ट अंदर लाइए। सी अगेन वॉक करते हैं ना, टोस्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, टोस्ट स्ट्रेट होना चाहिए। आप मुझे देखिए वॉक करते हुए, अगर देखेंगे, पहले सीखिए आप। सी हाउ स्ट्रेट आई एम लैंडिंग, मेरा टोस्ट बाहर नहीं था, तो हरप्रीत का टोस्ट थोड़ा सा बाहर था, ऐसे लाइक दिस। बी माइंडफुल ऑफ द एंगल ऑफ योर फुट ऑल्सो, यस, गुड। करिए, वॉक करिए, लंबा लंबा भी कर सकते हैं। इफ यू गो आउट ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो, प्रैक्टिस करिए, बट ये हमें रोज करना है। डॉक्टर मनदीप, यस, परफेक्ट। डॉक्टर मनदीप, परफेक्ट, यस। अदर्स, लेट मी चेक, जिसका कैमरा ऑन है आई कैन करेक्ट। गुड रिम्पल। बट रिम्पल आप टर्न हो जाओ, जब उल्टा आते ना टर्न हो जाओ एक बार के लिए, डोंट डू उल्टा वॉक। अंशु स्टार्ट, या एवरीबडी प्रैक्टिस। बलजीत आंटी थोड़ा सा उठाइए, आप थोड़ा सा नी को है ना उठाइए, हल्का सा, हल्का सा, यस, हल्का सा उठा के चाहिए, यस, गुड। सो दिस इज हाउ टू वॉक। आप बोलेंगे यार ये मुझे चलना सिखा रहा है, मैं 60-70 की हो गई, बट यस, मोस्ट ऑफ अस वॉक रॉन्ग। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड और काइंड ऑफ थिंग, यार ये मुझे क्यों वॉक करना सिखा रहा है। मेरे टीचर ने मुझे सबसे पहले चलना सिखाया था, मुझे आर्थराइटिस था ना, बोला मनीष यू आर वॉकिंग ना, तुम्हारा और घुटना खराब हो जाएगा, हिप्स खराब हो जाएगा तुम्हारा, ओके? तो मेरा आर्थराइटिस में मुझे काफी हेल्प मिला। अभी भी मैं वॉक करता हूँ, मैं बहुत फास्ट वॉक नहीं करता हूँ। लोग सोचते हैं यार ये तो इतना फिट है, इतना फास्ट वॉक क्यों कर रहा है। हम जितना फास्ट वॉक करेंगे, रन करेंगे, उतना ज्यादा आपका घुटना खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे फॉर पीपल विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके?
सो लॉन्ग मैराथन 42 किलोमीटर दौड़ना लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए. पीपल हु स्टे इन ब्लू जोन्स, पीपल हु स्टे इन ब्लू जोन्स, जो 120 साल जीते हैं, दे डोंट रन मैराथन्स एट ऑल. ओके, दे डू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस. तो प्लीज 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 डोंट सेट अ गोल कि मनीष ने मैराथन दौड़ा तो मुझे मैराथन दौड़ना है. आई डोंट रेकमेंड इट एट ऑल नाउ. वो जोश जोश में मैंने कर लिया, बट नहीं करना चाहिए. इट्स नॉट गुड. लॉन्ग रनिंग ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक है, बट एटलीस्ट आफ्टर अ सर्टेन एज यू शुड अवॉइड दैट. ओके, नाउ सिट ऑन अ चेयर. एवरीबॉडी प्लीज सिट ऑन अ चेयर. चेयर पे बैठ जाइए एंड गिव मी अ साइड एंगल इफ पॉसिबल. जैसे मैंने चेयर रखा है ना, साइड एंगल, प्लेस इट लाइक दिस. ओके, यू कैन सिट विद अ बैक सपोर्ट आल्सो इफ यू वांट. अगर आपको तकलीफ हो रही है, प्रेफरेबली विदाउट अ बैक सपोर्ट, प्रेफरेबली विदाउट अ बैक सपोर्ट. एवरीबॉडी ऑन अ चेयर. भले आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है नहीं है, एवरीबॉडी ऑन अ चेयर. एंड चेयर विदाउट अ व्हील. व्हील नहीं. ओके प्लीज, वरना मालूम पड़ा आगे पीछे घसक गए तो और कुछ प्रॉब्लम पड़ जाएगा आपका. दिस एवरीबॉडी कैन डू वेदर यू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस और नॉट. आपको है तो भी कर सकते हैं. इनफैक्ट बलजीत जी, किरण जी आपको हेल्प करेगा. दिस थिंग विल हेल्प. ओके, नाउ सी मैं कैसे बैठा हूं. मेरा पैर अंदर नहीं है. बलजीत जी आपका पैर अंदर है. इसको 90 डिग्री फॉर्म करिए. योर दिस एंड दिस थोड़ा सा आगे, नहीं इतना आगे नहीं. अभी 90 डिग्री नहीं, अभी हो गया, अभी 120 हो गया. बस परफेक्ट परफेक्ट. दिस इज द वे टू सिट. नाउ धीरे से अपने राइट पैर को ऊपर उठाइए. राइट पैर ऊपर उठाइए एंड टोस को अंदर की तरफ करिए. टोस अंदर की तरफ एंड होल्ड. अब थाइस में सबको थोड़ा सा टाइटनेस लग रहा है. शो मी अ थम्स अप. कैन यू फील द टाइटनेस इन थाइस? यस यस. 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है. धीरे से नीचे रखना है. धीरे से नीचे रखिए. अदर अदर लेग. अदर लेग. 1 2 3 4. सी पूनम मेन टोज अंदर नहीं है आपका. पूनम टोज अंदर की तरफ लो. यस. सी इसको ऐसे नहीं रखना है. टोज आउट नहीं रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा ना, तो आपको यहां पर फील होगा. रिलैक्स रिलैक्स. यस, कम कंटिन्यू. तो ये हमें 10-10 बार दोनों पैर के लिए करने हैं. पर मेन क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होल्ड करना है. ऐसे फटाफट नहीं करना है. दिस थिंग नहीं. दिस इज नॉट अ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज इज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्वाड्रिसेप्स. मतलब हमारे थाई मसल्स को मजबूत बनाने का एक्सरसाइज है. ओके, जस्ट शो मी एवरीवन कैसे करेंगे. आप घर में अकेले करेंगे, मुझे देखना है कितनी देर के लिए आप होल्ड कर रहे हैं. या बलजी जी, आई होप आपको मुझे आपका टोज नजर नहीं आ रहा है. टोज अंदर की तरफ होना चाहिए. ओके, आई होप. थोड़ा सा चेयर पीछे ले लीजिए. या लेट मी चेक नाउ. यस यस. टोज अंदर की तरफ करिए एंड होल्ड करिए. 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड देन डाउन. हर पे थोड़ा आगे आके बैठ जाओ. थोड़ा सा आगे आके बैठ जाओ. बिकॉज थोड़ा सा आगे. यस यस. सी दिस थिंग शुड नॉट बी सपोर्टेड. ये अगर सपोर्टेड रहेगा ना, तो आपको प्रेशर फील नहीं होगा. थोड़ा सा आगे होके बैठिए. इतना गैप रहना चाहिए एंड देन डू इट. कम, लेट्स प्रैक्टिस. So don't waste for osteoarthritis to strengthen your quadriceps, especially my students. हम करते हैं वैसे क्लासेस में हम कर रहे हैं. We do a lot of exercises to strengthen our quadriceps, but बाकी दिन भी ये मत सोचिए कि ये सिंपल एक्सरसाइज है यार, ये तो खाली एजेड लोगों के लिए. नो, बहुत सेफ एक्सरसाइज है. गुड. होल्ड करिए. 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करिए. सो पीपल विद सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ये एक्सरसाइज करने बोलते हैं, इवन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट. ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. करना क्या, बैठे बैठे कर लिए, ऐसे दिन में भी कर लिए. बट मेन थिंग है होल्ड करना. पूरा अंदर, टोज अंदर और अंदर. पूरा जितना अंदर करेंगे ना, इसको ऐसे रखेंगे तो असर नहीं होगा. अंदर रखेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा. अवर क्वाड्रिसेप शुड बी एक्टिव इन दिस. अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंकल वेट. सबको पता है एंकल वेट, जो एंकल में बांधते हैं. मेरे पास अभी है नहीं. अंशु, कैन यू गेट मी एंकल वेट्स प्लीज? अंशु, क्विकली लाके दोनों फटाफट. या एंकल वेट बांध के अगर ये करेंगे तो और बेनिफिट मिलेगा आपको. तो बहुत सिंपल है. अमेजोन से है ना, आप ½ kg या 1 kg का एंकल वेट मंगा लीजिए एंड उसको बांध के करिए. माय स्टूडेंट जिसके पास है लेके फटाफट लेके आइए. सब जिसके पास भी है घर में एंकल वेट ले आइए. Manish, I have. Can I do? यस यस, एब्सोल्युटली, यू हैव टू डू. दिस इज वन एक्सरसाइज पीपल विद ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन डू. ओके, तो देखिए मेरे पास एंकल वेट आ गया अभी. दिस इज अ ½ kg एंकल वेट. आई एम जस्ट वेयरिंग दिस. सी, जो आपको नहीं करना मैं बता दूंगा. जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वालों को नहीं करना है ना, बता दूंगा मैं. दिस एवरीबॉडी कैन डू इन मॉडरेशन. दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज.
एंड एंकल वेट का वेट जो है ना आगे की तरफ होना चाहिए। सी कुछ लोग एंकल वेट भी गलत पहनते हैं। एंकल वेट में वजन आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं, साइड की तरफ नहीं। ओके, पहन लीजिए एंकल वेट, जिसके पास है पहन लीजिए सर। So Anjana aunty, this you can do thrice a week on your own also, wearing the ankle weight thing. And those who don't have osteoarthritis, जिसको osteoarthritis नहीं है, वो हाफ kg एंकल वेट पहन के वॉक भी कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, हाफ kg का एंकल वेट पहन के आप वॉक भी कर सकते मनीष हैं। ओके, या मनीष, एक एंकल वेट्स आपने हमारे से मंगाए थे, वो डाल सकते हैं क्या? ऐसे वाले नहीं है और कौन से बताओ आप मुझे, ये शो मी, भी तो एंकल वेट्स है, शो मी वंस। ये जो आपने बोला था एक बारी। या सेम एंकल वेट्स ही है, ये एंकल वेट्स है। या तो ये डाल सकते हैं अभी हम लोग? हाँ हाँ, पायल जैसे पहन लो, जैसे पायल पहनते हैं ना, पायल की जगह। ओके ठीक है। Yes, come. So let's do the same thing with ankle weights and let's see the difference. Come, lift toes अंदर की तरफ। जिसके पास एंकल वेट नहीं है ना, आई सजेस्ट सब खरीद लीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू, पूरी जिंदगी आपका साथ देगा, आपके जीवन साथी की तरह। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। या आरती जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आरती पेसवानी प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। पूछा कैन यू म्यूट आरती पेसवानी? Okay, so this is one exercise, very safe exercise, everybody can do, everybody can do. Okay, come, you can remove the ankle weight now if you want, या जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पहन के भी कर सकते हैं बाकी एक्सरसाइज। Just a question. Yeah. बैक रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो बैक थोड़ा मुड़ती जा रही है. We have to be careful about that. नो, देन टेक अ बैक रेस्ट। अगर आपका बैक में कोई इशू है या बैक आपका अगर स्लाउच हो रहा है, देन टेक अ बैक रेस्ट। थोड़ा बैक Okay. रेस्ट के साथ करिए आप, ठीक है ना? यस, Okay. सी दीज आर इंडिविजुअल थिंग्स, दीज आर इंडिविजुअल थिंग्स। बट हाँ, अगर बैक में प्रॉब्लम है, लोअर बैक इशू है, स्लिप डिस्क है, कोई भी इशू है, नाउ खड़े हो जाइए इसके पीछे। आप अब चेयर के पीछे खड़े हो जाइए। एवरीबडी टेक अ चेयर सपोर्ट, प्लीज एवरीबडी टेक अ चेयर सपोर्ट। दिस इज अगेन फॉर पीपल विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, पीपल विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉट सिवियर। अगर आपको सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो एक बार अवॉइड करिए। But basically, it's a very safe exercise. You just have to bend it and straighten it. 1, 2, 3, 4. So Kiran ji, Balji ji, please be careful with this. कोर हमारा एंगेज होना चाहिए। कोर एंगेज मतलब पहले पेट को थोड़ा टाइट पकड़िए ताकि दूसरे पैर पे आपके वजन नहीं आवे। ओके, सो दिस इज अ गुड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। यस, अगेन दिस कैन बी डन विद एंकल वेट्स ऑल्सो। दिस विल स्ट्रेंथन योर हैमस्ट्रिंग्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत बनाएगा ये। अंशु सपोर्ट लेके करो, बेटर रहेगा। एवरीबडी टेक सपोर्ट एंड डू। आई नो आप बिना सपोर्ट के कर सकते हो, but let's try something new today and see the difference. Yes, so this is again for people with osteoarthritis. Next exercise for people with osteoarthritis, maybe Balji ji आप लोग बेड पे बैठ जाइए, किरण जी आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं। This is again a very simple exercise, everybody can do. Everybody sit on the mat or on the bed, बैठ जाइए। I'll just increase the lighting a bit. Yes, come. So we will do something called as एंकल मूवमेंट। जो एंकल मूवमेंट करते हैं, पैर खोल के बैठ जाइए एंड जस्ट एक्सटेंड द एंकल्स। एंकल्स को सामने एक्सटेंड करिए ऐसे पूरा, एंड फिर अंदर की तरफ लीजिए। जब अंदर की तरफ लेते हैं ना तो घुटने को नीचे प्रेस करिए आप, प्रेस योर नी डाउन। ओके, कम स्टार्ट। सो इनहेलिंग, एक्सटेंड योर टोज, इनहेल करके एक्सटेंड करिए। एक्सेलिंग, अंदर की तरफ करिए आप। अंदर की तरफ करते हैं तो घुटने को नीचे प्रेस करिए। थाइज आपके ना थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए। दिस थिंग ना यू शुड फील योर क्वाड्रिसेप्स में फील होना चाहिए आपको। सो इनहेल, स्लो करना है, ऐसा ऐसा फास्ट फास्ट नहीं किया कर लिया ऐसा नहीं हो। इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल मतलब अंदर की तरफ करिए वापस। इनहेल, बलजी जी आप खाली टोज कर रहे हैं, टोज नहीं करना है, पूरा एंकल को करना है। एक्सेल, दिस इज नोन एज एंकल पंप्स। दिस इज अगेन सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स इमीडिएटली आफ्टर नी रिप्लेसमेंट।
इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो इन योर लेग्स। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये हम 10 से 15 सेट कर सकते हैं। 10 बार एक्सटेंड, 10 बार कॉन्ट्रैक्ट करिए, सब करिए, बहुत अच्छा है आपके नी घुटने के लिए, बहुत अच्छा है आपके। एवरीबॉडी डू प्लीज। नाउ यू कैन रोटेट, थोड़ा सा एंकल को रोटेट कर लीजिए जस्ट फ्री करने के लिए। प्लीज अगर आपको किसी भी तरह का पेन है, गो वेरी स्लो। आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ एवरीवन जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक साथ मत करिए। नाउ नेक्स्ट सिंपल एक्सरसाइज, हमें नी को बेंड करके सीधा करना है, लाइक दिस। वन, जिसको पेन है प्लीज संभल के करिएगा, किरण जी, बलजीत जी संभल के करिएगा। 2, 3, 4। सो दिस इज अ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। करिए बलजीत जी, मैं आपको देख रहा हूँ कितना आपका रेंज ऑफ मोशन है। आई एम जस्ट चेकिंग आउट। नो, आपका रेंज ऑफ मोशन भी काफी कम है। आई थिंक यू शुड गो फॉर सर्जरी। बहुत कम है आपका रेंज ऑफ मोशन, यू आर नॉट एबल टू बेंड फुली। बलजीत जी साइड एंगल दे सकते हैं, साइड एंगल टर्न हो जाइए जैसे मैं बैठा हूँ। आई जस्ट वांट टू चेक। बलजीत जी, कैन यू टर्न? यस, साइडवेज टर्न हो जाइए आप। यस, एंड नाउ स्टार्ट। और नहीं आ रहे बलजीत जी, और नहीं कर पा रहे हैं? नो, 100% you have to go for surgery, 100%, no doubt about it, because you are not able to go up to 90 degree also, flexion आपका है नहीं उतना, so it will hurt more long term में, आपका और खराब हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे। Manish, I can do. या गुड, इट्स अ गुड थिंग, आई कैन सी हिम, देख रहा हूँ आंटी, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं, मेरी Really, नजर आप दोनों पे ज्यादा है, मेरी नजर आप दोनों पे ज्यादा है। यस, I can do गुड, it. मतलब comfortably. I'm doing it comfortably, not no गुड, stress. yes, no, good, that is, that's a good sign, it's not that bad, मतलब if you are able to do। yes, so this was the second exercise for ये। नेक्स्ट है हम लेट के करेंगे। सो एवरीबॉडी प्लीज लाई डाउन ऑन द मैट और ऑन द बेड, जहां भी आप लेट जाइए। आई जस्ट पुट, जो उसका क्लियर है मैं उसको स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ। आई जस्ट पुट अंशु ऑन द स्पॉटलाइट बिकॉज आई नीड टू लाइक टॉक एंड चेक ऑल्सो। आ रहा हूँ बेटा। या अंशु प्लीज गो ऑन योर साइड एंड लाई डाउन। मैंने गलती से अपने आप को म्यूट कर दिया था। यस, लाई डाउन। यस, कीप बोथ द लेग स्ट्रेट एंड नाउ स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाना है। स्ट्रेट, टोज अंदर की तरफ, टोज अंदर की तरफ, ओनली 30 to 40 डिग्री। उठाओ पैर, उठाओ राइट पैर। 1, डाउन, अदर लेग, 2। सी उसका टोज अंदर की तरफ है, जो उसको देख रहे हैं ना, अभी अंशु को देख रहे हैं, उनका टोज अंदर की तरफ है। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी गुड फॉर योर नीज, वेरी सेफ एक्सरसाइज, एवरीबॉडी कैन डू दिस। करिए, अपने आप करिए। गुड, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं अंशु, ऊपर 5 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते We have to breathe in while doing up. हैं। सी डोंट फोकस ऑन द ब्रीदिंग पैटर्न नाउ, फर्स्ट फोकस ऑन द रेंज ऑफ मोशन, बिकॉज एक साथ में बहुत ज्यादा बताऊंगा ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। Because both are okay, inhalation, exhalation, both are okay, there are two schools of thoughts, so don't worry too much about breathing। प्लीज जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है संभल के करिए, ज्यादा मत करिए, अगर आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है तो इट विल पेन अ लॉट। रिलैक्स, रिलैक्स अंशु, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसके लिए बहुत अच्छा है। अंशु लाई डाउन ऑन वन साइड, मेक अ पिलो ऑफ योर लेफ्ट हैंड। अंशु लेफ्ट हाथ का पिलो बना लो, लाई डाउन ऑन लेफ्ट साइड। यस, एंड नाउ स्लोली लिफ्ट योर राइट लेग अप स्ट्रेट, राइट लेग को ऊपर उठाना धीरे से, थोड़ा सा नीज को बेंड करो, हल्का सा नीज बेंड रहेगा, बेंड योर नीज स्लाइटली। यस, एंड नाउ टोज नीचे रहेगा, खाली नी ऊपर आएगा, टोज नीचे रहेगा, खाली नी ऊपर आएगा, ओपन करो। यस, 1, डाउन। सब पहले देखिए प्लीज, फिर करिए। अनिता भाभी को बॉडी टर्न हो रहा है, बॉडी टर्न नहीं होगा। अंशु देखिए, खाली पैर उठा रही है। 2, थोड़ा और उठाओ अंशु, थोड़ा और। बलजीत जी देख लीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग देके आप कर लीजिएगा, पहले आप लोग सीख लीजिए आज, बिकॉज लेटे लेटे देखना और करना पॉसिबल नहीं है। बलजीत जी डोंट सिट क्रॉस लेग, क्रॉस लेग मत बैठिए और प्रॉब्लम बढ़ेगा आपको, पैर खोल दीजिए। Yeah. जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, उसको क्रॉस लेगेड बैठना ज्यादा अच्छा नहीं है उनके लिए इनफैक्ट।
यस. सो दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज जो हम लेट के कर सकते हैं. थर्ड एक्सरसाइज अंशु दोनों पैर सीधा कर लेना, बोथ लेग स्ट्रेट. नहीं नहीं, साइड डाउन द साइड्स ओनली, डोंट चेंज द पोजीशन. एंड जस्ट लिफ्ट योर एंटायर लेग अप, जितना पैर उठा सकते हो ना, और 30-40 डिग्रीज. लिफ्ट योर राइट लेग अप. यस, वन. इतना नहीं, इतना नहीं. ये 90 डिग्री हो गया. आई टोल्ड 30-40. शी इज वेरी फ्लेक्सिबल, दैट्स व्हाई शी कैन डू. अगर आप कर सकते हैं तो पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज पीपल विद ऑस्टियोआर्थराइटिस खाली इतना ही करना है. हाफ अंशु, हाफ ऊपर है. वन डाउन, टू. दिस यू कैन डू विद द लूप बैंड ऑल्सो, जो हम लूप बैंड मान के करते हैं एंकल में, उससे भी कर सकते हैं. दिस इज फॉर स्ट्रेंथनिंग. जो आपके क्वाड्रिसेप्स का जो साइड वाला पार्ट होता है उसको स्ट्रेंथन करेगा. ओके. देन टर्न अदर साइड. अंशु में टर्न करो अभी, बट यू कैन टर्न टू द अदर साइड एंड डू बोथ द साइड्स. 10-10 बार हम ये कर सकते हैं. ओके. नाउ कम ऑन द बैक, लाई डाउन ऑन द बैक. अंशु, लाई डाउन ऑन द बैक अगेन. प्लीज डू इट विद अ फिजियोथेरेपिस्ट और विद अ ट्रेनर. किसी के साथ अकेले मत करिएगा जिसको आर्थराइटिस है. यू कैन डैमेज योरसेल्फ. दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस. ओके. टेक योर हैंड्स बिलो द हिप्स अंशु, बोथ हैंड्स बिलो द हिप्स, एंड slowly start cycling. Start cycling. Yeah. Slow. Yes. Yes. So this is again a very safe for your knees. Knees के लिए बहुत safe है. दिव्या भाभी, keep your hands below the hips, वरना lower back में issue आ जाता है कई बार. Keep both the hands below the hips. See how slowly she is doing. आराम से करना है, धीरे धीरे. आराम से जितना करेंगे ना उतना अच्छा है आपके लिए. Relax. Relax अंशु. Yes. So these were exercises, very simple exercises, जो आप कर सकते हैं strengthening के लिए, जो आप कर सकते हैं range of motion के लिए. अंशु, दोनों पैर सीधा करना, दोनों पैर सीधा, straight, hands near the body, palm facing down, toes अंदर की तरफ, टोज अंदर की तरफ. नाउ टेक योर लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट साइड, स्लाइड करो बाहर की तरफ हल्का सा, एंड अंदर की तरफ. यस, चेंज अदर लेग. टू. सो टोज अंदर की तरफ रहेगा, टोज को बेंड नहीं करना है. ओके. यस. 3. गुड. 4. दीज एक्सरसाइजेस यू कैन डू वेरी सेफली. किरण जी, बलजीत जी, या जिसको भी है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नहीं भी है तो उनको भी करना चाहिए. डोंट वेट फॉर आर्थराइटिस की आर्थराइटिस हो फिर हम करेंगे ये. डोंट वेट फॉर दैट. वेरी सेफ एक्सरसाइज, एवरीबॉडी कैन डू. उसका रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है. आपका भले ही कम हो तो कम करिए, बट करिए. बॉडी को स्टिफ नहीं होने देना है. बॉडी एक बार स्टिफ हो गई ना, बहुत तकलीफ देगा आपको. यस. गुड अंशु. नाउ टर्न ऑन द चेस्ट. अंशु, कम ऑन द चेस्ट. यस. मकरासन. एंड नाउ स्टार्ट बेंडिंग one leg at one time. one leg at one time. Yes. अंदर की तरफ. 1. Again a very good range of motion exercise. 2. ये हमने खड़े रह के भी किया था, ये लेट के भी कर सकते हैं. अगर आपको खड़े रह के तकलीफ है, लेट के काफी सेफ है. दिस इज अ वेरी सेफ एक्सरसाइज. Yes. Thank you, Anshu. Anshu, you can sit now. Anshu, sit in Sukhasan. Sukhasan. क्रॉस लेगेड. ऐसे नहीं बैठना है. अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ज्यादा देर तक बैठेंगे बलजीत जी और प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा आपका. ओके. ऐसे नहीं बैठना है. ओके. ऑलवेज सिट ऑन अ चेयर और टेक सपोर्ट, एंड आराम से बैठिए. ओके. सो दीज आर फ्यू एक्सरसाइजेज जो मुझे कवर करने थे रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस. थैंक यू अंशु. Yeah. So any questions anybody has now, so we can take up the questions now, or we'll end the session. Any questions regarding exercise, regarding diet, regarding treatment, regarding, yeah, but I'm not a doctor, so I cannot say treatment, but yes, definitely I can advise you whether you're going right or wrong. So see, purpose of this session was today, just जिसको osteoarthritis नहीं है, if 60% of Indians, yeah, 60% of senior citizens are having that, there is good chance that if you are obese, अगर आपका वजन ज्यादा है, yeah, if you are not taking care of your health, not doing strength training, not doing movement, leading a sedentary life, हम कहीं ना कहीं काम में इतने खो जाते हैं, हम काम में इतने खो जाते हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हैं, and then we suffer all our life.
तो make yourself a priority, as I always say to my students and to every one of you who is not even my student, make yourself a priority. क्या काम वैसा काम करके क्या अगर हमारा शरीर हम खत्म कर देंगे. ओके, सो बी एक्टिव थ्रू आउट द डे. कॉन्शियसली ज्वाइन ए योगा क्लास, सम टीचर. बहुत सारे सोर्सेज है आजकल, तो हर गली नुक्कड़ में आपको टीचर मिलेंगे. कोई टीचर को ज्वाइन करिए, कोई क्लासेस ज्वाइन करिए, अच्छा ग्रुप ज्वाइन करिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको मोटिवेट करेगा एक्सरसाइज करने के लिए. वीक में 4 से 5 बार का करना चाहिए एक्सरसाइज, हमें वीक में 4 से 5 बार करना चाहिए. बहुत जरूरी है एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए, बहुत जरूरी है. साथ ही साथ वजन कम करना, खासकर इंडियंस में जो टेंडेंसी है ओबेसिटी की, वजन कम करना बहुत जरूरी है. ये मत सोचिए कि अगर आपको लोग पतला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे. इनफैक्ट दुबला पतला होना ज्यादा बेटर है मोटापा से. ओके, सो डोंट गो बाय सोसाइटीज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. सोसाइटी का डेफिनेशन तो हेल्थ का ये रहता है कि जस्ट सेक, सोसाइटी का डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है कि आप अगर तगड़े हैं, मोटे ताजे हैं, देन इट्स गुड. नो, इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड. इट ब्रिंग्स अ होस्ट ऑफ कंडीशंस टू यू. काफी बीमारियां होती है. मैं बोलूं ना कि आज जापान में देखिए जो ब्लू जोन्स है, वहां पर लोग 120 साल जी रहे हैं आजकल. 100-120 साल. हमारी ह्यूमन लाइफ कोई 60-70 साल की नहीं है कि हम 60-70 साल में हमें डायबिटीज हो जाए, हमें हाइपरटेंशन हो जाए. बिकॉज ये सब बीमारी हमारी लाइफ स्पैन कम कर रही है. ये सब बीमारी अगर है ना, हमारी लाइफ कम हो रही है. आज देखिए कैसे लोगों का बीमारी रिवर्स होती है. हाउ वी लाइक रिवर्स हाइपरटेंशन ईयर, डायबिटीज ईयर, ऑस्टियोआर्थराइटिस ईयर. मुझे खुद 4 बीमारियां थी, एक बीमारी नहीं थी. आई हैड क्रॉन्स डिजीज आल्सो, व्हिच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन. इतना खतरनाक बीमारी थी मुझे, वो रिवर्स हो गई मेरी. ओके, एंड 16 साल से बिना कोई दवाई के. तो ठीक है, दवाइयां इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉब्लम है, बट साथ ही साथ जो हमारे कंट्रोल में वो तो हम करें. कि एक तरफ घर में आग लगी है, उसमें हम पानी और घी दोनों डालेंगे तो कैसे होगा. द काइंड ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग, जो खान पान आजकल हमारा हो गया है, दैट ऑल द आउटसाइड फूड, ऑल द जंक फूड, ऑल द बिस्किट्स, पिज्जाज, केक्स, बर्गर्स, चिप्स, ऑल these आर लाइक वी आर डिगिंग अवर ओन ग्रेव्स विद आवर ओन माउथ. लुक एट हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है, बेड्स में वेटिंग होती है. प्राइवेट हॉस्पिटल जो लाखों करोड़ों एक एक बीमारी के लिए कर रहे हैं, वो लोग ऐसा भाव खाते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास वेटिंग है. इज दिस द वे वी वर मेंट टू लिव? क्वेश्चन, आज स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स. आज डायबिटीज हाइपरटेंशन को बीमारी मानते ही नहीं है. डायबिटीज हो गया क्या बात है, गोली ले लो ठीक हो जाएगा. अगर ठीक नहीं होता है, यू आर सप्रेसिंग इट. कैंसर, इट वाज अनहर्ड ऑफ 30-40 इयर्स अगो. क्यों आया कैंसर? 1991 में इंडिया की इकोनॉमी ओपन अप हुई. ऑल दोस फास्ट फूड चेन्स केम टू इंडिया. एवरीथिंग फ्रॉम द अमेरिका जो हमने इंपोर्ट कर लिया. हम सोचे थे वी आर मॉडर्न, हम वी आर ईटिंग द सबवेज ऑफ द वर्ल्ड एंड द सैंडविचेस एंड द पिज्जाज एंड बर्गर्स एंड द जंक फूड, जो हमने फ्राइज खाना चालू किया. देखिए कैसे कैंसर आया. जो यहाँ पर 70s 80s में 60s में, पहले कैंसर हम सुनते नहीं थे इतना. पहले कैंसर एक शॉक होता था. कैंसर मतलब लोग शॉक होते थे. हर घर में आजकल कैंसर हो गया है. हर घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, बाईपास सर्जरी. लोग अरे क्या है, बाईपास ही तो हुआ है. अरे इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. आपका पूरा चेस्ट ओपन करके, पूरा रिब्स ओपन करके, हार्ट निकाल के वो लोग उधर आर्टरीज को सेट करते हैं. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. स्टेंटिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग. These things are preventable conditions. See, I'm not saying कि 100% क्योर सब चीज का है मेरे पास, नो. बट जो प्रिवेंटेबल है उसको तो हम प्रिवेंट करें. जो मॉडिफाइबल कंडीशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ मॉडिफाइबल कंडीशन, नॉट अ ट्रीटेबल कंडीशन. तो जितना हम मॉडिफाई कर सकते हैं उतना तो हम करें. बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, राइट वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए. बिकॉज मेडिकल कॉस्ट जो हिसाब से बढ़ रहे हैं, जैसे मेरे फादर ने जो पहला सर्जरी करा था उनका 3 लाख लगा था. अभी सेकंड सर्जरी में उनका 5 से 6 लाख खर्चा हुआ. जो हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, दिस विल गो इन्फ्लेशन बढ़ने ही वाला है. मेडिकल इन्फ्लेशन, इट विल पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर फाइनेंसेस. सो मेरे लिए मत करिए, आप खुद के लिए करिए. मैं तो बोलता हूँ खुद के लिए करिए. स्टार्ट मेकिंग स्मॉल चेंजेस, डोंट गेट ओवरवेल्म कि कैसे होगा. टेक वन बेबी स्टेप्स. बेबी स्टेप्स लीजिए. बहुत लोग हेल्प करने के लिए हैं यहाँ पर. शरण जैसे मैंने बताया, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वजन कम करना है, यू कैन कॉन्टेक्ट देम ऑल्सो. एक्सरसाइजेस के लिए मैं कराता हूँ एक्सरसाइज वीक में 3 दिन. दिस इज नॉट अ PR थिंग. माई स्टूडेंट्स नो दैट हाउ डेडिकेटेड आई एम टूवर्ड्स देम. प्लीज करिए, खुद के लिए करिए. डोंट रिलाई ओनली ऑन वॉकिंग. इंडियंस में टेंडेंसी क्या होती है, एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग को एक्सरसाइज मानते हैं. नो, इवन ओनली वॉकिंग इज नॉट इनफ. एक्सरसाइज के मैंने क्या सिखाया, क्या क्या जरूरी है. स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, बैलेंस. वॉकिंग आता है एंड्योरेंस में. बाकी 3 पहिए भी जरूरी है. गाड़ी में 4 पहिए, चारों में हवा होनी चाहिए गाड़ी अगर सही चल रही. तो इसको आप समझिए गाड़ी के 4 पहिए जैसा हो गया. गाड़ी में सही फ्यूल डालिए. पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालिए, डीजल गाड़ी में डीजल डालिए. कोई डालता है यहाँ पर पेट्रोल गाड़ी में डीजल, कोई डालता है क्या?
सब डालते हैं, सब डालते हैं। हमारा शरीर पेट्रोल के लिए बना है, डीजल डालते जा रहे हैं इसके अंदर। हमारा शरीर बना है मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट के लिए, मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट, बट वी पुट ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन इट, शुगर, ऑयल, मैदा, रिफाइंड फ्लावर, व्हाइट राइस। सी दीज थिंग्स खाली पॉलिश कर करके अच्छी बना दी गई है, अच्छी दिखा दी गई है, अच्छे पैकेजिंग में करके आपको दे दी गई है। ओके, इट्स नॉट मेंट फॉर अस टू बी ईटन। हम अपने पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालते जा रहे हैं, सफर करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट ईटिंग द राइट फूड, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम। जो मैं बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, स्लीप विदाउट अ फोन। फोन का एक पर्पज है, सोने के लिए फोन नहीं बना है, सुलाने के लिए फोन नहीं बना है। कीप द फोन आउट ऑफ योर बेडरूम, स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ मोर। अपने आप को प्यार करना सीखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने आप को, दैट आई एम हैप्पी, आई एम परफेक्ट, जो आई एम कंप्लीट, जो अफर्मेशन करते हैं क्लास में हमारी। एंड सी हाउ लाइव्स आर ट्रांसफॉर्मिंग, कैसे जिंदगियां बदल रही हैं। बिकॉज भगवान ने जो हमारा माइंड बनाया बहुत पावरफुल है। आज कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियां उससे भी पूरे उभर गए हैं, एंड कितने लोग हैं जो छोटा सा बैक पेन हो जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं सीईओ, थोड़ा सा बैक पेन एंड बोलते हैं मेरे L4 L5 में ऐसा है वैसा है, एंड दे स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशंस। अरे दीज आर वेरी वेरी सिंपल कंडीशन जो हम ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ईजी है उसको ट्रीट करना। बट ट्रीटमेंट के हाथ में जरूरी है कि हम खुद भी करें। जो मैंने आज इतना कुछ सिखाया आपको, लास्ट 1.5 घंटे में इतना कुछ सीखा हमने, इतनी एक्सरसाइज ही सीखी। करिए करिए, खुद करिए, छोटे छोटे चेंजेस लाइए एक साथ, बहुत ज्यादा चेंजेस मत लाइए एक साथ, बिकॉज फिर आप थक हार के सब नहीं करेंगे। ओके, सो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज रिगार्डिंग एनीथिंग वी डिस्कस्ड? Manish, can I talk to you anytime? Or I I'll can share my message number. you. Please message me Okay, first. Please please message share me your first. It's number. always better. Please message me first. Yeah. Okay. Yeah, So same here, yeah. Manish. I wanted to tell you कि I want to talk to you because it will आपका टाइम सबका खराब होगा. So I No have problem, some aunty. queries, तो मैं आपसे मैसेज कर लूंगी, तो अभी वो पूछ बात लीजिए ना, बेटर करेंगे. रहेगा। कारण क्या है कि आई वांट एवरीबॉडी टू गेट Yeah, yeah, एनलाइटेंड। And that's if true. it's a general, दूसरा, if it's a general question, it's a general question asked now yes, only, it's okay. सर्जरी के बाद का जो मुझे फीडबैक है हमारे अराउंड में, it is not good. That is why I was like, no, not thinking about it. So See, Same here. Same here. yeah. See, auntie, go by the statistics. Okay. So knee replacement surgery का जो सक्सेस रेट है, that is more than 95%. सक्सेस रेट मतलब ये नहीं कि 5% फेल हो जाते हैं, 5% का पेन शायद नहीं जाता है। ओके, एक्चुअल द सक्सेस रेट मोर देन 99%। एंड मेरे फादर ने एक बार 2018 रिप्लेस कराया था, एक बार 2023 में रिप्लेस कराया, एंड ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आफ्टर डूइंग द नी रिप्लेसमेंट उसके सर्जरी। बाद में चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कहते हैं कि दिक्कत आती है चलने में. 15 दिन से 1 महीना आपको वो जो वॉकर होता है, जो स्टिक होता है, तो पहले 5-7 दिन आपको वॉकर लेके चलना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 7-8 दिन आपको स्टिक लेके चलना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे आपका वो 15 दिन से 1 महीने में छूट जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका टोटल होता है कि पार्शियल होता है। टोटल में करीब तकलीफ रहेगी आपकी 15 दिन से 1 महीना, पार्शियल में आपकी तकलीफ रहेगी 7 से लेके 15 दिन। दूसरे दिन आप मुझे गाली देने वाले हैं। नी रिप्लेसमेंट के 1 मिनट जस्ट सेक। नी रिप्लेसमेंट के दूसरे दिन मनीष ने कहा मुझे भेज दिया। इट इज नॉट गुड। फर्स्ट 2 days आर नॉट गुड आफ्टर सर्जरी। आपको हिलने डुलने में तकलीफ होगी, आपको सब तकलीफ होगी, बट मैं तो बोलता हूँ 15 दिन की तकलीफ अच्छी है पूरी जिंदगी की तकलीफ से। ओके, तो इट्स पर अभी वर्थ इट। एक ही साइड में है, तो एक ही साइड का कराना चाहिए. राइट में है मुझे, ऑब्वियस लेफ्ट ठीक राइट है. में भी, एंड राइट में भी अगर एक कंपार्टमेंट खराब है तो एक कंपार्टमेंट कराना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना। नहीं, डोंट गो फॉर अ टोटल अननेसेसरी, डोंट गो फॉर अ टोटल। अगर डॉक्टर बोलते हैं ना पार्शियल से ठीक हो जाएगा, गो फॉर पार्शियल। ठीक. Yeah, but Thank you you will so be much. happy. After Yeah, 1 month, after surgery, you will bless me. thank you so much. Yeah, don't worry, don't go about किसी। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी ने बाईपास कराया, वो 20 साल जीता है, कोई किसी ने बाईपास कराया मे बी वो 1 महीना में नहीं जीता है। इट्स अ लक फैक्टर ऑल्सो, बट जिस चीज का सक्सेस रेशियो मोर देन 95% है ना, ब्लाइंडली गो फॉर इट। ठीक. आई एम नॉट सेइंग गारंटीड आपका ठीक हो जाएगा, बट देयर इज गुड 95% इज अ वेरी गुड रेशियो, इट्स अ वेरी गुड रेशियो। Thank you so much. या दिव्या भाभी, या भैया अकॉर्डिंग टू एज करवाना चाहिए कि मतलब कभी भी पेन हो तो करवा सकते हैं लाइक? सी पेन का रीजन क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओनली पेन अगर इज पेन नॉट। में अगर पता चले कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेनिकस को चोट लगी है, डॉक्टर इज अ बेटर जज, बिकॉज मेनिस्कस में भी काफी तरह का इलाज होता है। आजकल वो जो दूरबीन से इलाज करते हैं। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स कि यू डोंट डायरेक्टली गो फॉर रिप्लेसमेंट ओनली, स्पेशली एट अ यंग एज। सो मैंने जैसे बोला, वन ऑन वन मेरे लिए बताना इम्पॉसिबल, आई कैन ओनली आंसर जनरल क्वेश्चंस हियर। इट्स नॉट गुड टू आस्क मी आल्सो, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर।
तो मुझे ये पूछना सही नहीं है। बट बलजीत जी का क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन दैट हाउ इज लाइफ आफ्टर सर्जरी, फर्स्ट 2 days इज लाइफ इन लाइक नॉट हेल बट इट इज पेनफुल, यस इट कैन बी मैनेज्ड विद पेन किलर्स, बहुत सारे पेन किलर आपको दिए जाते हैं हॉस्पिटल में। 3rd 4th डे से पेन आपका धीरे धीरे कम होना चालू होगा, 3 या 4 दिन बाद। नॉर्मली किसी के इसको 7 दिन तक ज्यादा पेन रहता है, 15-20 दिन बाद जनरली आप खुश रहेंगे सर्जरी से, 15-20 दिन के बाद। या मोहिंदर जी सवाल है आपके? हाँ जी, मेरे ना नीज फुली कंप्लीट ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, ओके, टोटल रिप्लेसमेंट हुआ डिस्प्लांट। आपका? 20 years हो गए हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। वो देखिए बलजीत जी सामने कर कैसे रही हमारे, थी, तो इस करके मैंने कहा थोड़ा सा Okay, बता thank you. दूं। तो उनके 20 साल कोई पहले ऐसी पूरा प्रॉब्लम टोटल, नहीं है, आई लिव नॉर्मल लाइफ। मेरे को मतलब 20 बैठना years, उठना ये बोलते हैं, 5th मार्च बैठ को नहीं पूरे सकते। 20 years हो चुके हैं। Okay. बलजीत जी आप बैठने नीचे भी बैठ उठने सकते हैं। में मेरे फादर क्रॉस आप लेगेड बैठ जाते हैं, मेरे फादर मेरे है ना क्रॉस कंप्लीट लेगेड बैठ जाते ट्रांसप्लांट हुए हैं, मतलब पार्शियल नहीं हुए, पूरे ही दोनों ही नीज ट्रांसप्लांट हो रखे हैं। हैं। एक्चुअली 20 साल पहले था भी नहीं, 20 साल पहले पार्शियल था भी नहीं, ये हाँ, रिलेटिवली न्यू है। 2004 में हुए थे, ओह, ठीक है। तो Thank you तो so my much, भैया father ऐसे can my Mohinder father घबराओ ji. can मत। my father can sit my वैसे father can sit थोड़ी cross legged everything, yeah. आफ्टर सर्जरी ना थोड़ी केयर करनी पड़ती है, 2-3 महीने मतलब अच्छी केयर करो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक हाँ, पर मोहिंदर जी वो पहले था, 2-3 महीने वाला बात पहले था। विद न्यूअर टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, विद इन 1 month यू कैन गो आउट और ऑफ इंडिया तो ऑल्सो। डॉक्टर ही विद इन डिसाइड करेगा ना, फुल्ली डॉक्टर करनी है डिसाइड कि करेगा, पार्शियल करनी है, यस वही यस। देखेंगे। आई थिंक विद फिजियोथेरेपी जो है बहुत जरूरी है करना। सम पीपल अवॉइड दैट, दे डोंट डू बिकॉज ऑफ द पेन, फिजियोथेरेपी उससे दो प्रॉब्लम होती काफी होगी। टाइम चलती है। बट रीना जी अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रोडिक्ट हियर स्लाइटली। हाँ जो नई नई टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट किया गई ना, आफ्टर दैट फिजियो का भी रोल इतना नहीं रहा, आप सीखे खुद भी कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में तो मैं था ऑब्वियसली, तो वी डिड कीप अ फिजियो आल्सो, हम खुद ही कर लिए थे, हम तो खुद ही कर लिए थे उसको। बट इट्स एडवाइजेबल, अगर आपको नॉलेज नहीं है, इट्स एडवाइजेबल टू कीप अ फिजियो विद यू, ऑलवेज या एडवाइजेबल, यस। थैंक यू सो Physiotherapy, मच। exercise is very important. Exercise is very important to prevent also. So let's not talk only about replacement here. मेरा गोल वो नहीं था। मेरा गोल ये था कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है या आपका स्टार्टिंग स्टेज में, तो उसको हमें बढ़ने से रोकना है। मैंने बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन किया, आई होप सब इंप्लीमेंट करेंगे। Yes, डाइट, yes, एक्सरसाइजेज, you are. रूटीन्स, माइंडसेट, थैंक यू, एवरीथिंग। थैंक यू। You helped a lot. Thank you Yes. so But much. please Love you. so much. share your number. Lovely Thank you. session. Thank you so Yeah, much. Pooja, just send my number in the group. No, Pooja, just send my number in the group. And please message me first. Request everybody to please message me first Yes, and then sure, call. sure, sure. I'll Without talk to any everybody problem, we personally. will Yeah. take. Okay, Thank you. thank Thank you. you, Kiran ji. Thank you, Thank you, Manish. Baljeet ji. Thank you, everyone. Thank you. Welcome. Thank you. Thank So you. I end all my sessions with a song. I end all my sessions with a song. So why Okay, not sir. end it on a positive note with a very beautiful song? So this is by one of my favorite singers. मैंने जीवन जैस के सेशन में भी प्ले किया था ये सॉन्ग, जो विश्वास के बारे में, हमें हार नहीं माननी है। वी हैव टू नॉट कि हम कोई भी चीज से हार माने या डरे। दिस इज अ सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज डॉक्टर रीडा खान, वो भी डॉक्टर ही हैं। एंड here is there, just enjoy the song. You can mute yourself please. Yeah. एक बात है कहनी तुमको, है ये सुननी, जो हो रहा है ना वो होना ही था, जो खो गया है ना, जो छूट रहा है ना, उसे जाने भी दो वो कब तुम्हारा था। अब जो बात सीखनी है वो बस तुम्हारे हो, तुम्हारा रब तुम्हारा है, ना लोग तुम्हारे हैं ना लोग तुम्हारे हैं, ये सब वक्ती तौर पर तुमको सताते हैं। तुम मुड़ के पीछे ना देखो, अब आगे बढ़ना है तुमको, जहाँ भी मुश्किल आ जाए तुम अपने रब को बुला लेना, हिम्मत को अपनी बढ़ा लेना। दुनिया दीवानी है, करती बेगानी है, हर मुश्किल के बाद तो सिर्फ आसानी है। तो क्यों ना हंस के जी ले हम
को पा लेना, तुम अपना आप बना लेना, बस तुम तुम्हारे हो, तुम्हारा रब तुम्हारा है, ना लोग तुम्हारे हैं ना रोग तुम्हारे हैं, ये सब वक्ती तौर पर तुमको सताते हैं। Keep smiling. लास्ट बात उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बोली, कीप स्माइलिंग। ओके, सो वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे शेयर करना है अबाउट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें हील करती है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। ओके, तो हमें बहुत श्योर होना चाहिए हमें ठीक होके करना क्या है। ओके, तो जैसे किसी ने सेशन के स्टार्ट में शेयर किया, आई लॉस्ट माय सन एंड वेंट इनटू डिप्रेशन, एंड मैं बहुत बैठने लग गई थी। सी, वी हैव अवर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी आल्सो। आई कैन बिलीव कि जिसका बेटा चला गया उस पर क्या बीतती है। ऑब्वियसली आई एम आल्सो फादर ऑफ 3 किड्स। आई नो यू वेंट थ्रू अ लॉट, बट हमें अपना आइडेंटिटी नहीं खोनी है, दैट हमारा भी एक पर्पस है लाइफ का। मदर एक रोल था, मे बी इट वाज अ रोल दैट यू हैड एज अ मदर, दैट वाज सर्व। भगवान को लगा कि चलो मेरा पर्पस सर्व हो गया, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। बट हमारा जज्बा कितना स्ट्रांग है ना, मेरे फादर का जज्बा बहुत स्ट्रांग है। विद इन 15 डेज ही वॉज ऑफ टू गुजरात वर्क में। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला जा सकते हो, 16वें दिन वो गुजरात चले गए। ही डिडंट वेट कि ऐसा। हमारा जज्बा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें ठीक होके करना क्या है। सो हैव अ पर्पस इन लाइफ, हैव अ गोल इन लाइफ कि हाँ मुझे ठीक होके मुझे 20 साल जीना है, मुझे 20 साल जीने की उम्मीद होनी चाहिए। हमें हार नहीं मानना है, जिंदगी से हार नहीं मानना है कि नहीं मुझे ये हो गया, मेरा बेटा चला गया, या मुझे मुझे कुछ हो गया। नहीं, डरना नहीं हमें इससे। तो आपकी हीलिंग और फास्ट होगी, आपका रिकवरी आफ्टर सर्जरी और फास्ट होगा। सो डोंट लूज होप इन लाइफ। चलो ठीक है ना यार, एक मेरा रोल था, मेरा रोल पूरा हो गया, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। और भी तो रोल है मेरे इतने सारे, इतना कुछ है I'm a लाइफ में करने के student of लिए। Indri Di. That's why Yeah, I'm living a very good life. Thanks to her she is and she is a thanks to you blessing. too. Yeah, definitely. और can you send, मतलब आप अपनी ये recording जो अभी आपका session हुआ है, can you send us? I'll do that. It will be uploaded on YouTube. My YouTube link भेज daughter दूंगा। is in America, so I want to send her. So I'll send you that's the why I'll send the YouTube recording. I'll send the YouTube link. You can send that to her. okay, okay, Yeah. okay. Thank you. So nice of you. Love Thank you. you. No, Bhuaji is doing a great thing. Vrindi, Bhuaji is Yeah, doing a great definitely. thing at Jeevan She Jach. is pillar to us. She is very strong pillar of us. You So for cannot me also, imagine for me also, where she I is a strong was pillar. and where I am. You cannot imagine. We should उन्होंने clap for मेरे Kiran aunty for her जज्बे के लिए clap करना चाहिए. Yes, yeah, thank you very much. sure. Thank you, Reena. Thank you. Thank you all for joining. Thank you so much. Let's So much. let's Thank you. open our arms wide. Everybody open your arms wide. Come God on, daily bless ritual. Bye. you. चलो अपने आप को गले मिलो, अपने आप को गले मिलो। सबन क्या बोलने? I love myself. Myself. I love myself. Yes. जितना अपने आप Thank को you. प्यार करेंगे उतनी हीलिंग आपकी जल्दी होगी, जितना अपने आप को प्यार करेंगे आप। Definitely. Thank Okay, you. aunty. Thank चलो, you. So thank you, nice. thank you, thank you very Yeah. much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.